without any further delay, we're gonna have to start our topic, that is adaptation of nephron. Adaptation of kidney, we're gonna have to see about that. Adaptation of kidney or nephron, what we're gonna have to say about for that. So in that we're gonna have to see the types of nephron. This time I can study gonna which you're gonna have to study about the types of nephron. So remember that we have the two sort of nephron. Just for example, यहाँ पे मैं तुम लोग को दो regions बना के दिखा रहा हूँ into the kidney. One is the region of cortex and one is the region of medulla. ठीक है? That is somewhat the region of cortex and that is the region of medulla. As we know that the kidney consists of the two major parts. One is the region of cortex and one is the region of medulla. So we can see it over here. That is the thing which I made about for collecting that. As according to the example, so you can see that there are the two sort of nephron we have. One we have on the region of cortex and one we have on the region of medulla. So you can see it over here. यहाँ पे एक चीज मैं बनाना भूल गया, ये देख लो. Yes, here we go. You can see it over here, class. We have the two types of nephron. The first one that would comes onto the region of medulla as well, and this one it is only present onto the region of cortex. So class, what we're gonna have to see about for that, the type of nephron present onto the region of medulla, that type of nephron is called what? Juxtamedullary nephron. And the nephron which is being present on the region of cortex, that sort of nephron is called cortical nephron. इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ. That nephron referred to be as for what? Cortical nephron. So you can see it over here. We have the two types of organism we have. Sorry, two type of nephron we have. One which is being present onto the region of medulla and one is present onto the region of cortex. The type of nephron present onto the region of medulla, that nephron is called juxtamedullary nephron, and the nephron present onto the region of cortex, that is called what? Cortical nephron. So class, what we have to say about for that, the organism which having large juxtamedullary nephron, so these organisms retain a large quantity of water. Those organisms, अब यहाँ पे देखो मैं तुम लोग को अगर एक reason question के तौर पे देता हूँ, why those organisms absorb large amount of water having large juxtamedullary nephron. So if I'm asking you about for this question, what sort of thing you're gonna have to say about for this? कि भाई उन organism में larger amount of water ये absorb होगी जिनके पास large juxtamedullary nephron होगा. ऐसा क्यों class? Why? What is the reason behind it? You have studied according to the working of nephron, so you know about the parts of nephron. So you can see that which part we have on the medulla, which part of the nephron we have onto the medulla, and if it is being greater in size, so what could be the thing the organism can retain in a larger quantity, and what sort of organism it would be, where it could live. So what's your particular answer about this question? तो देखो मैंने इस पूरे टॉपिक को एक डायग्राम दी तुम लोगों को, और फिर मैंने ये बता दिया भाई दैट इज द juxtamedullary nephron एंड दैट इज द cortical nephron. और फिर मैंने तुम लोग को एक रीजन क्वेश्चन दिया कि व्हाट यू गोना थिंक क्लास कि उन ऑर्गेनिज्म में जिनका juxtamedullary nephron लार्ज है, जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ये एब्जॉर्ब क्यों होता है. तो यू गोना हैव टू टाइप योर आंसर what you have on your mind, जो तुम लोग के दिमाग में आ रहा है, you're gonna have to type on your text. अपने text पर type करना start कर दो. और what could be the reason? Just find it out the reason. Just tell me about the reason. What you gonna have to say about for it? जब तक मैं students को तो join कराऊँ. Okay.
Class, what do you think about for this condition? और ये भी सोचो कि which organism having the large amount of juxtamedullary nephron and why they have. तो ये particular organ का organism का नाम लेके भी पूछा जा सकता है भाई, this organism having a large juxtamedullary nephron, why? So what could be the reason you're gonna have to see about for that? Yes, class, juxtamedullary nephron. So what is the part you can see onto the region of medulla? What is a nephron? What is the part of the nephron you can see onto the region of medulla? Chalo, I got a very first answer and it seems to be very good. So because of the large surface area of loop of Henle having larger descending length, so it reabsorb more water. Because the area of PCT is more, no, you can see Uruj, there is no more PCT area in the region of medulla. Just you can figure out the thing. Uruj, you're gonna have to see the diagram very close. Observe karo isko, that we don't have PCT onto the region of medulla. We have a larger amount of loop of Henle, and by means of the larger amount of loop of Henle, the organism can retain a larger quantity of water and salt. So which organism have a larger juxtamedullary nephron? So the desert organism, remember that? Desert organism having the larger juxtamedullary nephron. Okay, that's right, loop of Henle. So class, the greater would be the loop of Henle, the greater organism reabsorbing the water and salt. Now what is the condition apply over here? यहाँ पे कौन से organisms की conditions apply होती है भाई? Desert organism having a larger juxtamedullary nephron. Why? Because it have to reabsorb a more concentration of water and salt. That's why having a larger concentration of juxtamedullary nephron. So class, that juxtamedullary nephron would be adapted according to the condition. According to the condition, according to the working, according to the environment. So those organisms which are living in a water scarcity condition, water shortage condition, organism which is being present onto those regions which having a more concentration of water. So the more organism would be living onto the scarcity of water, onto the shortage of water, the more it having the juxtamedullary nephron. So why these organisms? Why those organisms? Which organism? The desert organism. ठीक है ना? Having large amount of water. Why those organisms absorb large amount of water, having a large juxtamedullary nephron? Because that large juxtamedullary nephron containing loop of Henle, and that loop of Henle is responsible for the reabsorption of larger concentration of water as well as salt. That it's having the descending limb, which having the responsible for reabsorbing water, and it's having the salt which is responsible for reabsorbing salt. So class, that is somewhat the thing which we have regarding about for the adaptation of kidney. Would you find any trouble on that? So you may ask any question regarding about for that, or else we're gonna have to start the working of hormone which affect on kidney. We're gonna have to see the effect of hormone on the working of kidney. So class, if you have any trouble regarding about for that, so you can ask me about for this, or I gonna have to proceed. क्या मैं proceed कर सकता हूँ, or you have to ask some question regarding about for that? Any question about for that class? So we're gonna have to make it, or else you're gonna have to proceed. Chalo, jo question ho, if you're gonna have to put some questions onto that, you're gonna have to write up on you, or write up by yourself, or we're gonna have to make it after. अच्छा, एक बार फिर से repeat कर दें. तो भाई सिद्धार्थ देखो, we have the two parts onto the kidney. One the region of cortex, one the region of medulla. दो regions होते हैं हमारे पास kidney, one is cortex, one is medulla. So the nephron which is being present onto the region of cortex, देखो ये nephron जो आ रहा है second nephron, इसमें पूरा loop of Henle, PCT, DCT, glomerulus, ये सब आ गया cortex में. So that nephron is called cortical nephron, and that nephron is having a larger loop of Henle, so that it comes where? It comes onto the medulla side, so that referred to be as juxtamedullary nephron. And which part comes onto the medulla side? You can see, you know about for the structure which comes onto the medulla side, that is somewhat called loop of Henle. So why, if I'm talking, अब मैंने यहाँ पे reason दिया फिर तो देखो, why those organisms absorb large amount of water having large juxtamedullary nephron. उन organism में वाटर क्यों एब्जॉर्ब होता है, वाटर ज्यादा क्यों एब्जॉर्ब होता है, कि जिनका juxtamedullary nephron ज्यादा होता है. तो भाई ये juxtamedullary nephron you will have to remember about for a word that is called loop of Henle, and that loop of Henle is responsible for the reabsorption of water and salt. And yes class, we know very well, the greater the amount, or the greater
the size of loop of Henle, the greater would be the reabsorption of water and so on. Sir, both are Sir? nephron present in one organism. Yes, both are the nephron which is being present in one organism, but it could define us. That those organisms present onto the region of desert, they contain the more concentration of juxtamedullary nephron. Their kidney would be more defined as compared to those organisms which living in a more concentration of water. Yes, बेटा, क्या कह रहे हो? जी सर, यही क्वेश्चन था कि एक ही ऑर्गेनिज्म में ये दोनों मौजूद होंगे या डेजर्ट एनिमल्स दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन डेजर्ट ऑर्गेनिज्म में juxtamedullary nephron की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द organism which is being present onto the region of water efficient condition. ठीक है क्लास, कोई मसला और किसी को? Okay, now we gonna have to make on to the next topic, that is what are the hormones which affect on kidney. तो पहले तो हमें थोड़ा बहुत हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन क्या होते हैं हार्मोन्स, क्या होना चाहिए, तो पहले देखते हैं हार्मोन्स को थोड़ा बहुत। और हार्मोन्स को हम डिटेल स्टडी भी करेंगे। कहाँ स्टडी करेंगे? चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारा पूरा टॉपिक है वहां पे। तो व्हाट वी हैव ऑन दैट, लेट्स सी इट ओवर हियर। Effect of hormone on the working of kidney. So we have a certain task over here, that is what effect of hormone on the working of kidney. So what we have the hormone which affect the working of kidney. Class, बात अगर ये करें हार्मोन, व्हाट इज हार्मोन एक्चुअली? बाय द वे, हार्मोन्स बेसिकली रेफर टू बी एज अ केमिकल मैसेंजर है। हार्मोन किसको कहते हैं? हार्मोन के लिए अगर एक वर्ड डिफाइन करूं तुम लोगों को समझाने के लिए, दैट इट रेफर टू बी एज केमिकल hormone. Refer to be as for what? It refer to be as chemical messenger. Messenger means when it comes onto the organ starts its working. Okay, it act as a initiator, it act as a starter, precursor, और मैंने क्या कहा इसको? केमिकल मैसेंजर। नहीं, ग्रोथ इनहिबिटर। भाई अगर कोई हार्मोन ग्रोथ प्रोमोटर भी होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर भी होते हैं। अब वो वर्किंग डिफाइन होती है कि कुछ हार्मोन्स का काम क्या होता है? इनहिबिशन। तो वो अगर हार्मोन्स आएंगे तो ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। कुछ होते हैं ग्रोथ प्रमोटर, वो आएंगे तो ग्रोथ क्या होगी? इनहांस होगी। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो किडनी पे आते हैं तो वहां पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जो रिलीज होते हैं तो किडनी से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो किडनी पे अफेक्ट करते हैं तो उनसे कैल्शियम रीएब्जॉर्ब होता है। सो दैट इज द हार्मोन। मैंने तुम लोग को एक सिंपल वर्ड क्या दे दिया? डोंट फॉलो द वर्ड ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर। तुम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिटेल करोगे, लेकिन यू गोना हैव टू रिमेंबर अबाउट अ थिंग, केमिकल मैसेंजर। भाई मैसेज आएगा तभी ग्रोथ इनहिबिट होगी। मैसेज हार्मोन आएगा तो ही ग्रोथ इनहिबिट होगी, हार्मोन आएगा तो ही ग्रोथ प्रमोट होगी, हार्मोन आएगा तभी वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, हार्मोन आएगा तभी सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा, हार्मोन आएगा तभी कैल्शियम रीएब्जॉर्ब होगा। तो हार्मोन व्हाट इज इट? इट इज अ केमिकल which acting as a messenger, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? स्टार्ट अप करेगा। ठीक है, तो व्हाट आर द हार्मोन्स which affect on the working of kidney? यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स है जो किडनी की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं? लेट्स सी इट ओवर हियर क्लास। Here we gonna have to start about for a very first thing we have about for over here, that is what? ADH। पहला नाम ADH। नाम देना चाहें अगर इसको हम, तो इट रेफर टू बी एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट रेफर टू बी एज फॉर व्हाट? इट रेफर टू बी एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और भी इसको नाम दिया जाता है, इट आल्सो रेफर टू बी एज वैसोप्रेसिन। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां पे हमने देखा इट हैविंग अ वर्ड दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके शारिक सर, हार्मोन्स मैसेज देंगे या किसी फंक्शन में भी? अरे शारिक, ये हार्मोन्स मैसेज देके किसी फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। इट रेफर टू बी एज मैसेंजर, इट रेफर टू बी एज स्टार्टर, इनिशिएटर, प्रोमोटर, इनहिबिटर। इट स्टार्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, रेट फंक्शन को ये क्या करते हैं? स्टार्ट करवाते हैं। ये जब तक नहीं आएंगे फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर ADH, इट रेफर टू बी एज फॉर व्हाट? Anti-diuretic hormone. What is the function of it? It helps to reabsorb water. It is not help, it's responsible to reabsorb water. Okay,
It is responsible for what? It is responsible to reabsorb water. कि जब ये release होंगे तो water kidney से reabsorb होना start होगा. ठीक है, तो that do what? It initiate the function. It initiate the function of reabsorption. So class, if the body is hypertonic, the greater concentration of ADH would be released or the lesser concentration of ADH would be released. भाई पानी की कमी हो रही है बॉडी में, ADH ज्यादा रिलीज होगा या कम रिलीज होगा? यस शारिक, would you like to answer about for this question? ज्यादा रिलीज होगा, बिल्कुल. देखो ADH it is responsible to reabsorb water. अब बॉडी में हाइपरटोनिक कंडीशन, बॉडी हाइपरटोनिक हुई है तो बॉडी को वाटर चाहिए, सो द मोर कंसंट्रेशन ऑफ ADH वुड बी रिलीज. अब मैं तुम लोग को बात बताऊं, ADH रिलीज कहां से होता है? ब्रेन से. ADH ब्रेन से रिलीज होता है ऑफ इट्स पार्ट हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से ये पार्ट जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपका कहां पे होता है? इट इज बीइंग प्रेजेंट नियर अबाउट ब्रेन. तो कहां से रिलीज हो रहा है? हेड से रिलीज हो रहा है, और कहां जा रहा है? इट गोज ऑन टू द रीजन ऑफ किडनी. इट इज अ केमिकल व्हिच इज बीइंग रिलीजेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हेड, और वहां से रिलीज होके ये किडनी पे जा रहा है. ठीक है, एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? रिस्पांसिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. देखो, यू गोना हैव टू मेक दिस थिंग बाय द नेम ऑफ इट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंटी मींस व्हाट? एंटी मींस व्हाट? क्या मतलब होता है एंटी का? यस का ऑपोजिट. एंड व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड डायूरेटिक? or against, opposite or against. ठीक है, diuretic. What do we mean by the word diuretic? Uretic, urination. Diuretic मतलब क्या हुआ? टू. नहीं, टू नहीं, डबल यूरिनेशन. मतलब डबल यूरिनेशन मतलब इंक्रीज यूरिनेशन. समझो थोड़ा सा. diuretic, यूरेटिक मतलब यूरेटिक मींस यूरिनेशन. die for what? double urination मतलब increase in urination, increase in the amount of urination. So class, when does urination increases? When the body having a lot concentration of water. But when the body having no enough concentration of water, so class, in order to reabsorb water, the hormone released, that is called what? Anti-diuretic hormone. The hormone which is oppose the condition of urination. By water intake. हाँ बोलो. सर जो हमने डिसेंडिंग लिम्ब का जो हमने फंक्शन पढ़ा था, तो वहां पे ये काम करेगा? वहां पे भी काम करेगा, वहां पे भी काम करेगा, और DCT पे भी काम करेगा. लूप ऑफ हेनले पे भी काम करता है और DCT पे भी काम करता है. Those area where the reabsorption occur, it being occur onto that part. ठीक है, मेजॉरिटी डिसेंडिंग लिम्ब से होता है, वहां पे भी रिलीज हो रहा है, और साथ साथ कहां पे रिलीज होगा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे भी ये रिलीज होता है. in order to do what? In order to reabsorb the concentration of being released onto the region of brain. मैं इसका पाथवे यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलो तुम लोगों को. It will be released onto the part of brain. Which part of the brain? Hypothalamus. Produce होता है, वहां से प्रोड्यूस होता है और जाके स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. These all are the thing which is being present onto the region of what? Onto the region of head. वहां से ये केमिकल, ये ADH रिलीज होता है और कहां पे आता है? onto the region of abdomen, onto its part which is called kidney. So class, that is the pathway we have over here from where it would be releases. ये pathway तुम लोग को पता होना चाहिए क्योंकि ये pathway chapter number 3 में भी recall होगा, तो ये चीज तुम लोग को पता होनी चाहिए. इस टॉपिक के लिहाज से जो चीज पता होनी चाहिए क्लास, दैट इज एंटी-डायूरेटिक हार्मोन vasopressin is responsible for what? Is responsible to reabsorb water. क्वेश्चंस अब कैसे बनेंगे सर इसमें? तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि क्लास, if the body concentration would be hypertonic, which of the following hormone would be released? तो हमारे पास ADH सिर्फ तुम लोग नहीं पढ़ोगे, ADH के अलावा भी तुम लोग टॉपिक्स को हार्मोन्स पढ़ोगे. दैट इज व्हाट? एल्डोस्टेरोन, पैराथॉर्मोन. तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तुम लोग से, एमसीक्यूज में भी बन सकता है, रीजनिंग क्वेश्चन भी बन सकता है. तुम लोग से पूछा गया कि what if the body is hypertonic in nature, if the body having a low concentration of water, what is the hormone which have to be released at that time? ADH, aldosterone, parathormone. So you are gonna have to take about for ADH. So class, ADH is responsible for what? Is responsible for the reabsorption of water,
where does it affect? It affect onto the descending limb of loop of Henle, as well as it also affect on DCT for reabsorbing water from the body. ठीक है class? So where does it will be form? Produce कहाँ पे होता है? You remember that it will be produced onto the part of the brain that is called hypothalamus. Produce brain से होता है और जाके store हो जाता है posterior lobe of pituitary gland में. और posterior lobe of pituitary gland से ये ADH release होता है at the time of need. At the time of need ये direct brain से secrete नहीं होगा, ब्रेन में प्रोड्यूस होगा और स्टोर हो जाएगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा एट द टाइम ऑफ नीड, और जब ये रिलीज होकर किडनी पे आएगा, सो दैट इज द थिंग व्हिच इज तो क्लास एडीएच के हवाले से कोई मसला बोलो सर। ये एडीएच की रिलीज होने के लिए ये वाली बात बता दें कि बॉडी को हाइपरटोनिक होना चाहिए या हाइपोटोनिक? देखो, बॉडी इफ फेसिंग द हाइपरटोनिक कंडीशन, सो एट दैट टाइम इट वुड बी रिलीज. बॉडी अगर हाइपरटोनिक कंडीशन में है तो उस वक्त ये रिलीज होगा. अगर बॉडी हाइपोटोनिक कंडीशंस में है, सो दिस कुड नॉट बी रिलीज, एज यू कैन सी ऑन टू द कोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन. कोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन होता है, सो द बॉडी फेसिंग इंक्रीज यूरिनेशन. So why increase urination occur? Because ADH would not be released at that time. You can observe that condition onto the cold, onto the region of cold. So what happened? कि कोल्ड कंडीशंस में क्या होता है, बॉडी से वाटर, बॉडी से यूरिनेशन ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम एडीएच वुड नॉट बी रिलीज. एडीएच वुड बी रिलीज मोर एट द टाइम ऑफ समर. तो ये समर और विंटर एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी हमारे पास कंडीशंस फेस होती हैं कि अगर बॉडी हाइपरटोनिक कब होगी ज्यादा, मोस्टली ऑन टू द समर कंडीशन, बिकॉज क्योंकि स्वेटिंग भी हो रही है, हमारा पसीना वैसे ही जा रहा है. सर्दियों में इतनी वाटर लॉस नहीं होती, तो क्लास इन ऑर्डर टू रिलीज वाटर आउट फ्रॉम द बॉडी, तो एडीएच की सिक्रीशन कम हो जाती है ऑन टू द रीजन ऑफ कोल्ड, तो यूरिनेशन बढ़ जाएगी और एडीएच डिक्रीज हो जाती है. सो क्लास इट वुड मेंटेनिंग द ऑस्मो रेगुलेशन फैक्टर एज वेल. अब बोलो कोई मसला? नो सर, थैंक यू. चैट्स मैं पढ़ लेता हूँ, किसी का अगर कोई सवाल आया हो तो देख लेते हैं. ठीक है. Okay, now the next thing which we're gonna have to talk about for the next hormone, that is called aldosterone. So what is the responsibility of it? देखो एक एक लाइन से इनकी responsibility समझते जाओ. That ADH, it is responsible for the reabsorption of water. Aldosterone, it is responsible for what? It is responsible to reabsorb sodium ion. किसको reabsorb करे क्लास ये? It is responsible for to reabsorb sodium ion. Okay, तो क्लास it reabsorbs sodium ion. What is the role of sodium ion in our body? क्या sodium ion का कोई रोल हो सकता है बॉडी में? Any idea about for that? सर essential electrolyte है. तो what is the function of electrolyte? What is the function of electrolyte? Sodium है ना, क्या function होगा? For producing nerve impulse, याद रखना. For producing nerve impulse. Nerve impulse क्या होता है? To transfer the message from one neuron to another neuron. ठीक है? तो सोडियम, मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर why we have a specific hormone only to reabsorb sodium ion. मतलब सोडियम को कोई इतना वैल्यू ही नहीं करते. कहते हैं कि सर ठीक है, वाटर बहुत एसेंशियल देंगे, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए हार्मोन होना चाहिए. पैराथॉर्मोन भी एक एसेंशियल हार्मोन है जो कि which is responsible for what? Which is responsible to reabsorb कैल्शियम आयन. वो क्या कहते हैं, वैल्यू देते हैं कैल्शियम को. कैल्शियम जरूरी है सर. सोडियम का काम क्या है भाई? सोडियम का काम क्या है? नर्व इंपल्स. जैसे कि यहाँ पे मच्छर काट रहा है, तो what you can do if mosquito bites on your left hand, so what your right hand do? क्या करेगा राइट हैंड तुम्हारा? बैठा रहेगा. क्या करोगे? उसको हटाने के लिए मारोगे ना. तो how does this thing would interact? ये दोनों चीजें इंटरेक्ट कैसे हो रही हैं? ये दोनों चीजें इंटरेक्ट हो रही हैं कैसे? What is the thing which interact them? ये दोनों चीजें मिल रही हैं कैसे? मैसेज जा रहा है पहले सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन के पास, और ब्रेन फिर इसको ऑर्डर कर रहा है, तभी ये दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं. तो हाउ डज द मैसेज वुड बी ट्रांसफर? द मैसेज वुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, अनदर टू अनदर, अनदर टू अनदर. तो क्लास द मैसेज वुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड नर्व इंपल्स, एंड दैट नर्व इंपल्स वुड रिक्वायर अ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सोडियम. ये सोडियम ना हो तुम लोग कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं कर सकते. अगर डिहाइड्रेशन की एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं ना, डिहाइड्रेशन सिर्फ पानी की कमी नहीं होती, नमकियात की भी कमी होती है. सो व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट द बॉडी रिक्वायर? दैट इज द सोडियम आयन.
ये सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाए, बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो इट इज बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट वी हैव इन आवर बॉडी। लोग बच्चे वैल्यू नहीं करते क्योंकि इसका पार्ट आपकी अभी बुक में नहीं रही में, तो वहां पे बहुत डिटेल लो लिखा हुआ है। लेकिन अभी मेरे पास सवाल आ जाता है, सर ठीक है वाटर तो जरूरी था, उसके लिए एक हार्मोन होना जरूरी है, कैल्शियम जरूरी था, उसके लिए हार्मोन होना जरूरी, सोडियम का काम किया है सर? यस, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट डज इट गोना डू? इट परफॉर्मिंग द नर्व इंपल्स। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नर्व इंपल्स? नर्व इंपल्स होता क्या है? The transfer of message from one neuron to another neuron, ठीक है ना। अब मैं अगर तुम से पूछता हूँ कि कैल्शियम का रोल क्या होता है, in order to reabsorb calcium we have a hormone that is called parathormone। इतनी जल्दी मैं पैराथॉर्मोन में नहीं आऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम लोग से पूछना चाहूंगा कि भाई कैल्शियम के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इट? व्हाट इज द रोल ऑफ इट? बोन्स में मदद करता है। मतलब जब कैल्शियम की बात आती है तो हमारे पास एक ही बात आती है, सर बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, इट स्ट्रेंथन द बोन। मैं बताऊं तुम लोग को, व्हेन यू विल स्टडी चैप्टर नंबर 3, जब तुम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ लोगे, चैप्टर नंबर 3 तक फर्स्ट पढ़ोगे, सेकंड पढ़ोगे, फिर थर्ड आएगा, तो जब तक तुम लोग थर्ड पार्ट में आ जाओगे तो ये जो तुम लोग अभी जवाब दे रहे हो मुझे कि सर कैल्शियम हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द बोन, कैल्शियम मेक्स आवर बोन, थर्ड बेस्ट पॉइंट बन जाएगा। इससे पहले दो बेस्ट पॉइंट होते हैं। सेकंड बेस्ट पॉइंट क्या होता है? कैल्शियम हेल्प्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। कैल्शियम हेल्प्स फॉर द contraction and relaxation of muscles, as well as calcium is also responsible for maintaining what? For maintaining nerve impulse. So how it would be occur? How it would be do that? तो हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, वो कैल्शियम है हड्डी स्ट्रॉन्ग करेगा, कैल्शियम है हड्डी स्ट्रॉन्ग करेगा। अरे भाई आपके मसल्स भी तो वर्किंग करते हैं। योर मसल्स वर्क इन अ मैनर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंड व्हाट इज द स्पेशल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दे रिक्वायर कैल्शियम आयंस। ये हमें कोई नहीं बताता इस लेवल तक। माजरत के साथ कोई बुक में है ही नहीं हमारे पास, सोडियम और कैल्शियम को बहुत अंडररेट करते हैं। कैल्शियम को तो अंडररेट नहीं करते। मैं अगर पूछूंगा कैल्शियम का तो सब ये बताते हैं ना कि सर बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। एक्चुअल फंक्शन जो होता है इसका भी नर्व इंपल्स होता है। फिर अगर सेकंड बेस्ट ऑप्शन में हो तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, और थर्ड बेस्ट फंक्शन में हो तो भाई मैं फिर कहता हूँ कि हाँ भाई बोन्स के लिए भी बहुत ज्यादा अफेक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा पहले मैं अपनी बात एल्डोस्टेरोन के हवाले से थोड़ा सा करते हुए चलूं। एल्डोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है? तो क्लास इट रिलीज एंड प्रोड्यूस फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से वाली बात कीजिए भाई, एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड है। और एड्रीनल what do you know about the word एड्रीनल? एड्रीनल का मतलब नहीं, एड्रेनलिन तो हार्मोन है। Renal means kidney, ad means adjacent, it is a gland present near the kidney। और इस ग्लैंड में भी दो पार्ट्स होते हैं, होप मैंने बताया हो तुम लोग को, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। एल्डोस्टेरोन कहां से रिलीज हो रहा है? इट रिलीज फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। Where does aldosterone release? Aldosterone release from where? Aldosterone release from the adrenal cortex। ठीक है, तो adrenal cortex से रिलीज होता है, and what does it do? It reabsorb the sodium ion। And what am I talking about for parathormone? Parathormone it is responsible to reabsorb। के हमें कहा जाता है कि कैल्शियम लेना जरूरी है। अरे भाई कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी लेना जरूरी है। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी लेना भी जरूरी है। आपकी बॉडी में कैल्शियम है, विटामिन डी नहीं है, तो वो विटामिन अगर आपकी बोन्स में कैल्शियम, एग्जैक्टली राइट, विटामिन डी हेल्प्स फॉर व्हाट? विटामिन डी हेल्प्स फॉर Vitamin D helps in what? Vitamin D helps in reabsorbing calcium into the bones। जब तक विटामिन डी नहीं होगी कैल्शियम बोन्स में reabsorb नहीं होगी। भले अब वो विटामिन डी ज्यादा हो रही है तो भाई बॉडी तो उसको रेगुलेट करेगा। विटामिन डी नहीं है, इट इज नॉट बीइंग रिस्पांसिबल बाय द बॉडी। आपकी डाइट वैसी नहीं है कि आप विटामिन डी नहीं ले रहे हो, बॉडी में कैल्शियम आ रही है, लेकिन अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे हो तो वो कैल्शियम एक्सेस होने की वजह से कहां चला जाएगा? किडनी के पास चला जाएगा। अब किडनी क्या करेगा? उसको एक्सेस समझ के किडनी बॉडी से वो वेस्ट कर देगा। It can be done, but class you remember that कि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म इतना अच्छा है कि इतने अच्छे इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी में बाय मींस ऑफ रिलीजिंग अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड पैराथॉर्मोन। और अगर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन की बात आती है तो पैराथॉर्मोन कहां है करेगा? पैराथॉर्मोन एक्ट ऑन डीसीटी। पैराथॉर्मोन एक्ट ऑन वेयर? पैराथॉर्मोन एक्ट ऑन डीसीटी। आई गोना टेल पैराथॉर्मोन बाय द नेम ऑफ पीटीएच। और ये कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है? सो क्लास इट वुड बी रिलीज फ्रॉम अ ग्लैंड दैट इज कॉल्ड पैराथायरॉइड ग्लैंड। Where does parathormone release? The parathormone release from the parathyroid gland. Parathyroid gland releasing a hormone that is called PTH, which named to be as parathormone, which is responsible for the reabsorption of calcium from the kidney। तो बॉडी में याद रखना कि कैल्शियम ज्यादा हो रहा है तो it cannot be reabsorbed onto the bone
It would not be reabsorbed onto the bone until there is no vitamin D. कैल्शियम ज्यादा होगा, किडनी पे जाएगा, किडनी उसको एक्सेस समझ के वेट तक रीएब्सॉर्ब होगा बाय मींस ऑफ अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड पैराथॉर्मोन, पीटीएच भी कह सकते हो. कहां से रिलीज होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड से. पैराथायरॉइड ग्लैंड कहां मौजूद होता है? थायरॉइड ग्लैंड के नियर अबाउट मौजूद होता है. थायरॉइड ग्लैंड कहां मौजूद होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन टू द रीजन ऑफ नेक. क्लास आई गोना हैव टू क्विट दिस मीटिंग ओवर हियर बिकॉज़ इट इज लेस देन 1 minute left and I gonna have to send you the code right very quickly after that. Chalo. For today we're gonna have to start about for composition of urine and its significance. तो इससे पहले जो हमने कॉम्पोजिशन तुम लोगों को टॉपिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ाते हुए बताई थी, वो कॉम्पोजिशन थी ब्लड की. ठीक है ना? अब ब्लड तो फिल्टर हो गया और जो हमारे पास impurity the form of urine and we're gonna have to see that what are the things we have in urine. तो क्लास 100 सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया यूरिन का. ठीक है, we're gonna have to take the 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ यूरिन और इसमें से हम क्या देखते हैं कि 95% of them is water whereas only the 5% of them is solute. So what अभी भी मेजर करोगे सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब इन फॉर्म पे आप मेजर करोगे. So what are the composition of urine, what urine we have in that? तो आओ जरा सा देखते हैं. Number one, if I'm talking about for, that is water, protein. What next we have? That is glucose. I think the next one, it would be urea, creatine, ammonia. देखो अभी जो हमारा सीजन चल रहा है ना, सीजन मतलब जो अभी हमारी कंडीशनिंग चल रही है आफ्टर बकरीद, ये चीज क्रेटिनाइन और यूरिक एसिड पेशेंट में बहुत ज्यादा हमें हाई लेवल पे मिलता है. क्योंकि अब ग्लाइकोजन किससे मिलता है? हमें क्या खाएंगे ऐसा जिससे हमें ग्लाइकोजन मिल रहा होगा? अरे नहीं ना, अभी 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 हम अगर हम कोई ऐसी चीज खा रहे हैं अभी जो हम मोस्ट ऑफ इट प्रेफर करते हैं कि हम उसको इसी उसकी लज्जत ज्यादा होती है तो वो हम खाते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ता है. वो ऐसी क्या कौन सी चीज है? चलो बताओ. गाय का गोश्त. गाय का गोश्त. गाय का गोश्त हम वैसे भी खाते हैं. गाय की ऐसी कौन सी चीज है जो हम अभी बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, जो भाई फर्स्ट डे की लज्जत होती है? कलेजी. कलेजी, कलेजी. ठीक है ना? तो दैट वुड बी, मतलब जो हमारी बॉडी का ग्लाइकोजन है. मेरी वीडियो लैग तो नहीं कर रही है? नहीं कर रही होगी. तो मैं यहाँ पे बताता चलो, हमारी बॉडी को जो ग्लाइकोजन मिल रहा है ना, दैट इज वी कैन गेट इट बाय मींस ऑफ द लिवर. और वो हम इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या चीज बढ़ने का खर्चा हो सकता है? आते हैं तो यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन ये बहुत बढ़ता है. फॉर दोस किन पेशेंट में बढ़ता है? मिडिल एजेड पेशेंट्स में यूरिया, क्रेटिनाइन और यूरिक एसिड इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है. इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उनमें किडनी पेन भी होता है, किडनी स्टोन भी फॉर्म होता है. तो ये रही की वजह से अगर वो मिडिल एजेड पेशेंट्स, हमें कुछ नहीं हो रहा, वी बीइंग द यंगस्टर, हमें अभी कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जो मिडिल एजर्स हैं वो अगर गोश्त की क्वांटिटी ज्यादा ले लेते हैं या जो एजेड है गोश्त की क्वांटिटी ज्यादा ले लेते हैं पास, और जब हम उनका यूरिया क्रेटिनाइन चेक करवाते हैं तो उनका यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लेवल्स भी देखते जाएंगे कि व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ यूरिया क्रेटिनाइन वी हैव इन दैट. तो सोडियम क्लोराइड और कुछ मैं यहाँ पे हमारे पास आयंस है, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम. ठीक है ना? अब इनकी लेवल्स और क्वांटिटीज हम यहाँ पे देखते हैं. तो क्लास अगर लेवल देखी जाए कॉम्पोजिशन कंसंट्रेशन पर 100 सेंटीमीटर, तो क्लास द 95% concentration would be what? It would be of water. What about for either the protein would be present in urine or not? So you can see that there is no protein, there is no glucose, and yes, the urea constitute of. इसमें अमोनिया भी हमारे पास कितना है? अमोनिया would be 0.3 to 0.7. क्रेटिनाइन भी कितना है? 0.3 to 0.7. 0.3 to 0.7, 0.3 to 0.7. अब यहाँ के अकॉर्डिंग देखो, एक सवाल पूछा जाता है, मैमल्स क्रेटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया. तो व्हाट बीइंग योर आंसर? तुम लोगों का आंसर क्या होगा इसमें? आउट ऑफ द फॉलोइंग यूरिक एसिड का भी अगर कंसंट्रेशन देखते हो, इट वुड बी 0.3. ठीक है ना? सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए. मैमल्स में मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. आउट ऑफ द अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन. ठीक है? So out of which, what is the toxic waste which would be excreted by mammals mostly? हाँ भाई, इनमें से कौन सा ऐसा वेस्ट है जो मैमल्स बहुत ज्यादा एक्सक्रीट करता है? शारिक, सर यूरिया, अमोनिया और
भाई अपने आंसर्स को आप स्टेट करो चैट बॉक्स में, ठीक है, सबके साथ स्टेट योर आंसर ऑन टू योर चैट बॉक्स। जब तक मैं प्रीवियस जो हमारे मेरे कंप्यूटर के जितने भी बैकग्राउंड्स हैं, प्रीवियस बैकग्राउंड, उनको मैं क्लोज कर दूं। ओके, यू गोना हैव टू मतलब तुम लोग सब मुझे अपने आंसर्स देते जाओ। ओके, तो शारिक अमोनिया, फिजा अमोनिया, हफ्सा यूरिया, सैयद उरुज फातिमा यूरिया, मारूक अमोनिया, सना फातिमा यूरिया। कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द चार्ट। देखो अब इस चार्ट को पढ़ने का बहुत ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे हमारे जो टीचर्स हैं वो अक्सर छुड़वा देते हैं, मतलब ये कॉम्पोजिशन कहाँ से आएगी। देखो ये चीज यहाँ पे छोड़ोगे, एप्टीट्यूड में तुम्हें टैकल आउट करेगी, और एप्टीट्यूड में हम कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते। तो भाई अब यहाँ पे देखो गौर से, अमोनिया की परसेंटेज देखो, यूरिया की देखो, यूरिक एसिड की देखो, क्रिएटिनिन इज व्हाट, दैट इज यूरिया। वैसे क्रिएटिनाइन का जो लेवल होता है वो 1.3 तक जा सकता है, ठीक है, 1.3 तक जा सकता है, लेकिन जो आपकी बुक में फॉलो हुआ है वो मैं यहाँ पे कोट करता जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ बुक। तो यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वाई द कंसंट्रेशन, अब अगर इसी की यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पहले मैं बता दूं अमोनिया की नहीं है, आप लोग अकॉर्डिंग टू द चार्ट देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर्मुलेट करूं, व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज हाई इन मैमल, व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज हाई इन मैमल्स। मैमल्स में यूरिया की कंसंट्रेशन हाई क्यों होती है? तो दो भाई इसका आए हो, थोड़ा सा टैकल आउट करो, अपना जहन चलाओ। अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रोटीन इनटेक करके आए हो, प्रोटीन विल बी द गुड सोर्स फॉर मसल बिल्डिंग, बट आई गोना हैव टू सी दैट हाउ योर ब्रेन वर्क्स आफ्टर बकरीद। तो व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज हाई इन मैमल? तो यस क्लास, व्हाट्स सॉल्वेंट इन वाटर? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। देखो मैं आप कोई भी चीज, अब देखो यू आर इन अ लेवल कि अब मैं तुम लोग को डायरेक्ट चीज नहीं, बिकॉज सेलेस्टियल है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, फिर आप कुछ और सोचो, और सोचो, सोचते जाओ। मैं रॉन्ग इसलिए नहीं कह रहा कि तुम लोग गलत कह रहे हो यार सर, क्योंकि अमोनिया के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है डिफ्यूज करने के लिए, तो इसीलिए जो मैमल्स हैं वो अमोनिया के बजाय यूरिया में मतलब स्विच कर जाते हैं अपने वेस्ट मटेरियल के लिए। कैसे कैसे स्विच कर जाते, कैसे स्विच अप कर जाएंगे? ज्यादा पानी, ये तो बताओ, ज्यादा पानी उसमें वेस्ट नहीं होता ना यूरिया के अंदर, मतलब वो सॉलिड होता है सर, क्योंकि पानी रिअब्सॉर्ब हो जाता है एकदम से, पानी रिअब्सॉर्ब हो जाता है एकदम से। ठीक है, यूरिया कैसे बना, यूरिया कैसे बना? आई एम गोना हैव टू नो दैट हाउ यूरिया इज बीइंग, व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज हाई इन मैमल। वो कौन सा रीजन है? रीजन नहीं नहीं, ग्राइंड अप योरसेल्फ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जब तक मेरी पुरानी वीडियो थोड़ा सा रेंडर हो जाए, तो थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी हो सकता है तुम लोगों को सही मिले। तो हाँ भाई बोलो। और शारिक, वेयर आर यू? कैन यू कम ऑन टू द चैट, कम ऑन टू द माइक एंड इन्फॉर्म मी। और कौन है भाई हमारे पास बच्चे? इतने सारे बच्चे हमारे पास, बहुत सारों ने ज्वाइन नहीं किया। मारूक, सना फातिमा, व्हाई यू आर चूजिंग फॉर यूरिया? अपने अपने आंसर से स्टेट करते जाओ। All of you getting my voice clear? चलो भाई इसको ही बता दो that all of you are getting the voice clear or not? Yes or no? Yes, चलो यही बता दो। चलो तो why the चलो भाई एक आंसर आपका सर, उसकी स्टेट तो नहीं है वजह, नहीं नहीं नहीं, और कुछ सोचो भाई। अमोनिया हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया और नॉट? मैमल्स में क्या अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है या कि तुम बात ही नहीं कर रहे? मुझे बताओ, क्या मैमल्स में हमारी बॉडी में, हाँ, तो कौन करता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट? लिवर। व्हाट इज द थिंग व्हिच हैव टू कन्वर्ट अमोनिया? Exactly, by means of cycle. कौन सी cycle मुझे पूछना थी। देखो, why the concentration of urea is high in mammal? Because in mammal, liver converts ammonia into urea by means of a cycle that is called ornithine cycle. In mammal, the concentration of urea is high. Why? What is the reason ammonia into urea by means of a cycle that is called what? Ornithine cycle. इतना सा जवाब था, समझ में आया? चलो मैं यहाँ पे किसी को डिसग्रेस नहीं कर रहा, किसी को मैं कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या आंसर पिकअप किया तुम लोगों ने? जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट देने की कोशिश की है कि इन दिस वे दे कैन आस्किंग यू द रीजनिंग। चलो वीडियो हो चुकी है। इन दिस वे दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन एंड इन दिस वे यू कैन हैव टू आंसर अबाउट फॉर कि व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। यहाँ पे साथ साथ मैं तुम लोग को एमसीक्यूज भी देता जाऊंगा, रीजनिंग क्वेश्चंस भी देता जाऊंगा। आखिर में नहीं मांगता भाई, देखो मैं जितनी भी अपनी स्टेटमेंट्स होती है ना, वो मैं नोट्स फॉर्मुलेट नहीं करता। जो मेरी लाइव कन्वर्सेशन में जो चीजें आ रही, रीजनिंग भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि साथ साथ टॉपिक्स में ही हम जो है अपने रीजनिंग क्वेश्चंस फॉर्म कर रहे होते हैं, एमसीक्यूज बना रहे होते हैं। हाँ, आखिर में भी कुछ हम सॉर्ट आउट करेंगे, रीजन अलग से भी करेंगे, लेकिन इसको साथ साथ टॉपिक्स में भी लेते हुए चलते हैं, ठीक है ना क्लास? अच्छा, तो यू कैन सी दैट व्हाई, एक और रीजन हमारे पास आता है, व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लूकोज नॉट फाउंड इन यूरिन।
Why the concentration of protein and glucose not found in Because urine? they are ये एक और complex रीजन पूछ molecules. लिया, क्या जवाब दोगे? If I'm talking about for protein, yes, but if I'm talking about for glucose, it is wrong. Glucose तो complex molecule नहीं होता, बहुत simple molecule है. देखो फर्स्ट यहीं पे जाते हैं हम. प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, पास नहीं होगा. प्रोटीन कब आएगा यूरिन में? अगर प्रोटीन आ रहा है तो इट मीन द पेशेंट कुड बी द विक्टिम ऑफ किडनी डिसऑर्डर, किडनी फेलियर, बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. शारिक एसेंशियल हैं बिल्कुल. प्रोटीन एंड ग्लूकोज वुड नॉट बी फाउंड in urine because it is essential for the body. And how the body can get protein and glucose? By the process of reabsorption done by PCT. थोड़ा सा पूरा कवर अप करके कहना शारिक, ठीक है ना? Your answer would be right. The protein and glucose would not be found in a healthy patient urine. Why? Because that is the essential component which have to be reabsorbed by PCT and can and transfer them back into the blood. और किन पेशेंट में, because they are in यूरुज ब्लड में भेजेगा तो नेफ्रॉन ना, कौन सा पार्ट ऑफ नेफ्रॉन भेजेगा? पीसीटी भेजेगा, ठीक है ना? यू कैन हैव टू मेक योर आंसर इन अ वे लाइक दैट, ठीक है? ये भी अच्छा. देखो अब अगर किसी पेशेंट की यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, सो इट कुड बी द रीजन ऑफ किडनी इन्फेक्शन, किडनी फेलियर, किडनी प्रॉब्लम्स. अगर किसी पेशेंट की क्या कहते हैं यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन के ट्रेसेस आ रहे हैं, इट्स मींस कि उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सही तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा, उसका पीसीटी सही तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा, एंड दैट कुड बी द रीजन ऑफ वेस्टिंग प्रोटीन एंड ग्लूकोज. और कुछ पेशेंट्स के यूरिन में अगर सिर्फ ग्लूकोज आ रहा है तो इट मींस के पेशेंट वुड बी द विक्टिम. सर डायबिटीज. एग्जैक्टली राइट, डायबिटीज. बिल्कुल सही. तो अगर पेशेंट की यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज्यादा हो रहा है, एग्जैक्टली ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज्यादा हो रहा है. अब लेवल ज्यादा हो रहा है, बॉडी हैव टू मेंटेन इट, एंड इफ द बॉडी हैव टू मेंटेन इट, बॉडी क्या करेगी? ज्यादा हो रहा है उसको यूरिन के थ्रू पास ऑन करवा देगी. सो दैट द पेशेंट विल बी द विक्टिम ऑफ ग्लूकोज. और डायबिटीज के कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं, चक्कर आता है, थर्स्ट होती है, हंगर होती है, बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिनेशन होती है, बार बार भूख लगती है. तो दैट कुड बी द रीजन ऑफ. हाँ, इंसुलिन प्रोडक्शन विल कंट्रोल दैट. लेकिन देखो ना, अगर कोई पेशेंट नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा इनटेक कर रहा है ग्लूकोज या कार्बो, एक आपका बॉडी का कैटेगरी, अब देखो मैं यहाँ पे दो तीन चीजें बताता जाऊं ग्लूकोज के हवाले से. ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल, मैंने तुम लोग को ये फीडबैक सिस्टम में पढ़ाया है. एक ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल होता है बेटा, दैट वुड बी, इट विल बी अराउंड 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसिलीटर. अब एक पेशेंट ग्लूकोज बहुत ज्यादा हाई ले रहा है, मतलब अब उसकी इनटेक ज्यादा है, वो चीनी ज्यादा ले रहा है, सारी चीजें ज्यादा ले रहा है, तो उसका ग्लूकोज का जो लेवल नॉर्मल ले रहा है, कितना रह रहा है? 160. अब अगर वो ग्लूकोज कट डाउन करके नॉर्मल पे आएगा तो उस पेशेंट को चक्कर आने लगेंगे, वो नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा. तो दैट कुड बी द पॉइंट. देखो, हाई इनटेक ऑफ ग्लूकोज कैन बी द रीजन ऑफ डायबिटीज, व्हिच शुड बी एक्चुअली राइट. अगर पेशेंट ग्लूकोज ज्यादा लेगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेगा, तो डायबिटीज का विक्टिम होता है. क्यों विक्टिम होता है? क्योंकि एक वक्त तक जब वो हाई ग्लूकोज ले रहा होता है के बजाय मैक्सिमम किसको कर लेती है? 160 पे. अगर ग्लूकोज 160 उसका नॉर्मल रेंज, अगर सेट पॉइंट देखो क्लास, हम अगर आजकल लॉकडाउन में 11 बजे सुबह उठ रहे हैं या 11 बजे दिन को उठ रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, और अगर नॉर्मल रूटीन 7 बजे की थी, अब हम 11 बजे उठ रहे हैं, अब एकदम से लॉकडाउन ओपन होता है और हमें 7 बजे उठना होता है, क्या हम सुबह 7 बजे आसानी से उठ सकेंगे? यस और नो? जल्दी आंसर. नहीं उठ सकेंगे. वजह क्या है? वजह व्हाट इज द रीजन? आदी हो गए. तो भाई बिल्कुल ठीक, आदी हो गए ना. तो जब हम आदी हो सकते हैं, हमारे बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म आदी हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. अब एक पेशेंट ग्लूकोज ले ही ज्यादा रहा है, कार्बोहाइड्रेट ले ही ज्यादा रहा है, चीनी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी बेवरेजेस हैं वो बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है, तो उसका जो बॉडी का सेट पॉइंट है वो 120 लास्ट नहीं होगा, उसका सेट पॉइंट कितना हो जाएगा? 160. उसका जो सेट पॉइंट क्रिएट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा क्लास? 160. मतलब कि उसने अपनी बॉडी का लेवल क्या कर लिया? बढ़ा लिया. अब इस कंडीशन को लो करने के लिए इंसुलिन वर्क नहीं करेगा. इस कंडीशन को लो करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए इंसुलिन वर्क. तो ह्यूमन में यूरिन इन्फेक्शन कैसे और क्यों होता है, उसके बहुत सारे रीजन है. पहले ये समझो कि डायबिटीज की वजह क्या आ रही है, कि इंसुलिन क्यों वर्किंग नहीं कर रहा. इंसुलिन वर्किंग ना करने की वजह यह है कि बॉडी ने अपनी ग्लूकोज इनटेक हैबिट बना ली है, ज्यादा कराने लगेंगे, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकेगा, उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा, उसका शुगर लेवल डाउन होगा. इवन दो वो 80-120 पे भी है, लेकिन उसको चक्कर आएंगे, उसका शुगर लेवल उसको डाउन लगेगा, क्योंकि उसने अपनी आदत किस पे बना ली? हाई इनटेक पे.
तो हाई इंटेक की जब आदत हो जाएगी तो इंसुलिन रिस्पॉन्ड नहीं करता, दैट कुड बी द रीजन ऑफ डायबिटीज। अब आओ सही यूरिन सर इन्फेक्शन ये की 80 क्या to 20 वजह? जो हाँ रेंज बोलो है ये ग्लूकोज इन ब्लड की है, यानी कि एग्जैक्टली हमारे ब्लड में जो होती 80 है milligram per glucose। deciliter to 120 milligram per deciliter, that could be the range of glucose level in our blood। अब मैं अपने दूसरे सवाल पे आता हूँ कि यूरिन इन्फेक्शन कैसे हो सकता है। तो भाई द वायरस एंड बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूसेस इन्फेक्शन ऑन टू द सर्टेन साइट्स वगैरह पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं वहां पे वायरस और बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जो यूरिन पास होने में या फिर यूरिन की फिल्ट्रेशन में हर्डल क्रिएट करते हैं, एंड दैट कुड बी द रीजन ऑफ इन्फेक्शन। सर क्या डायबिटीज के सिम्टम हर इंसान में डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं? डायबिटीज के सिम्टम्स मेनली जो एवरेज डायबिटिक कंडीशंस हैं या एवरेज डायबिटिक कंडीशन रिपोर्टिंग है, ये सिंपल है, हंगर, थर्स्ट, पॉलीयूरिया, ठीक है, चक्कर आएंगे पेशेंट को, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वेट गेन होगा या वेट लॉस भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। और दूसरी कंडीशन जो इसमें आती है पॉलीयूरिया, दैट कुड बी द रीजन ऑफ डायबिटीज। ये चार मेजर हैं जिससे कोई भी डॉक्टर पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है या नहीं हो सकती, और उसी के अकॉर्डिंग वो टेस्ट फॉरवर्ड करता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस और नो, जल्दी जल्दी बताना बेटा। सर आ रही है सर। ओके, पॉलीयूरिया मींस इंक्रीज यूरिनेशन को हम पॉलीयूरिया कहते हैं, ठीक है ना। तो अब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कमजोरी हो रही है, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं और मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। तो मैं उससे थर्ड अपना जो क्वेश्चन पूछता हूँ कि यूरिनेशन भी ज्यादा हो रही है, तो बोलता है यस। मैं क्या करूंगा, उसका यूरिन टेस्ट करवाऊंगा। सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, यूरिन डीआर, ये मैं उसको टेस्ट लिख के दूंगा ताकि ये चेक करने के लिए उसका ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना आ रहा है, वो तो हम वैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और यूरिन में उसके ग्लूकोज आ रहा है या नहीं आ रहा। दैट इज द फिजियोलॉजिकल टेस्ट व्हिच आई हैव टू बी परफॉर्म फास्ट, ताकि मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर कर सकूं कि इस पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग व्हिच वी गोना हैव टू परफॉर्म फास्ट। और प्रोटीन और ग्लूकोज आने की वजह बहुत सारी हो सकती है, दैट इज ऑल द रीजन इन व्हिच द यूरिन कॉम्पोजिशन वुड बी चेंज। और साथ साथ अगर आपसे पूछा जा सकता है दैट द urine would be strong acid, weak acid, strong base or weak base, तो क्या जवाब दोगे इसका? Yes class, what would be the thing you're gonna have to mark it over here? सर नॉर्मल कंडीशंस में या डायबिटिक? हाँ, नॉर्मल कंडीशन बताओ। What is urine actually? Either it's a strong acid, weak acid, strong base or weak base. ये कहीं आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आपको जज करना है। What you can say about for it? Yes, Sharik is a weak acid. Why weak acid? Strong acid क्यों नहीं? Base क्यों सर नहीं? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उससे स्टोन्स भी फॉर्म हो सकते हैं। नहीं भाई, देखो कॉम्पोजिशन के लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। कॉम्पोजिशन के लास्ट में लिखा हुआ है pH. That is what is the 5. pH of urine? 5 है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा? कैसे? वीक एसिड होगा। वीक एसिड। एग्जैक्टली राइट। अगर भाई 1 2 3 होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता, 4 5 6 है तो क्या होगा ये? इट वुड बी द वीक एसिड, और बेस तो 7 के बाद शुरू होता है, तो यस इट इज व्हाट, इट इज वीक एसिड। इन दिस वे दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अनविलिंग सा टॉपिक लगता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से हम डायग्नोस कर रहे होते हैं ना, टेस्ट से ही। एक तो चीजें तुम लोग को, 2 चीजें भाई पढ़ने आनी चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट का तुम लोग को ब्लड टेस्ट दिया जाता है, उसका टेस्ट पढ़ो। यीस्ट इन्फेक्शन, दैट इज द इन्फेक्शन प्रोड्यूसेस बाय द फंगस है ना, यीस्ट फंगस है, और इट वेयर देयर इज अ डेपोजिशन ऑफ स्वेट एंड वेयर देयर इज नो वेंटिलेशन, तो वो वहां पे यीस्ट इन्फेक्शन करते हैं, कैंडिडा होता है। तो दीज आर द सर्टेन इन्फेक्शन वुड बी, ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। अगर वो पार्ट जिसमें स्वेटिंग कंडीशन ज्यादा होती है, मॉइस्चराइजेशन ज्यादा होती है, एंड इट कुड नॉट बी क्लीन प्रॉपर्ली, तो देयर वुड बी द सर्टेन फॉर्मेशन ऑफ फंगस। जैसे कि हमारे फुटसोल होता है, एथलीट्स फुट्स वगैरह होते हैं, तो एथलीट्स बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं तो उनके फीट में स्वेटिंग ज्यादा होती है, और अगर वो अपने सॉक्स चेंज नहीं करते, सो देयर कुड बी द डेपोजिशन ऑफ फंगस ओवर देयर। इसी तरह से रहेंगे, अगर वो मॉइस्चराइज रह रहे हैं स्वेटिंग से,
आप उस पार्ट को चेंज, आप उस जगह की पोजीशंस को चेंज नहीं करे, क्लीन अप नहीं करे, सो देयर कुड बी द फॉर्मेशन ऑफ यीस्ट और फंगस ओवर देयर। तो क्लास दैट इज समवॉट वी हैव द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि तुम लोग को पढ़ने आना चाहिए, क्या तुम लोग को पढ़ने आना चाहिए ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, तुम लोग को पढ़ने आना चाहिए यूरिन टेस्ट रिपोर्ट। मैंने तुम लोग को ब्लड की कॉम्पोजिशन भी पूरी बताई और यूरिन की कॉम्पोजिशन भी पूरी बताया, एंड यू गोना हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द थिंग व्हिच वी हैव read in NAML, that is what urea, because liver converts ammonia into urea by means of a cycle that is called ornithine cycle. And yes, that is most toxic thing, most available waste product we have in urine 2% है, 5% में से 2% solute क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूरिया है। And our urine that would be weak acid in nature. If we found any protein traces or glucose traces in urine, so it could be the reason of kidney failure, infection, diabetes, or maybe pregnancy. So that is somewhat we have regarding about for composition of urine and variation in the composition and its significance. Now I gonna have to make the certain next topic regarding about for kidney failure. यहाँ तक कोई मसला class? No, sir. Okay, so we have the two problems regarding about for kidney failure. Number one is kidney stone, and another one would be the dialysis. ठीक है ना, एक हमारे पास kidney stone है, और sorry kidney stone है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास kidney failure. किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट लिथोट्रिप्सी है, और किडनी फेलियर में हम डायलिसिस भी करते हैं और ट्रांसप्लांटेशन भी परफॉर्म करते हैं। आओ बात करते हैं किडनी प्रॉब्लम्स। पहले प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो लेट्स गेटिंग स्टार्टेड विद अ पार्ट दैट इज किडनी प्रॉब्लम। तो भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट या विद ड्यू टू अवेलेबल टाइम, ठीक है, due to the available time I'm gonna have to start the first problem, that is what kidney stone. The first problem which I have to start, that is what the kidney stone. तो भाई यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सर how does the kidney stone would have to be formed? to remember that, देखो अपने फिंगर टिप से रखो ये सारी चीजें, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, याद रह जाएंगे। Kidney stone would be formed by the three reasons, and what are they? By the 70% deposition of calcium oxalate और phosphate oxalate को मैं ज्यादा टारगेट आउट करता हूं, by the deposition of 20% infective stone which is made up of magnesium ammonium ions and which is deposited by the 5% deposition of uric acid. तो भाई देखो पहले यहाँ पे these are the three reasons which I am marking about for the condition of kidney problems, or what you can say about for kidney stone. The first one, that could be deposition of calcium oxalate. The second one, that could be the 20% infective stone, and the 5% it would be what? It would be the uric acid formation. अब मैं यहाँ पे बात करूंगा पहले यूरिक एसिड के हवाले से। देखो लास्ट टॉपिक हमने देखो कि उसमें यूरिक एसिड that it would be around 0.3%. 0.3% है। अगर बॉडी में ज्यादा हो जाता है यूरिक एसिड तो, और यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कहाँ चली जाती है? 5%, तो इट कैन फॉर्मिंग द किडनी स्टोन। ये यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई कब होती है? तो मैंने बताया ग्लाइकोजन इंटेक, वो पेशेंट जो ग्लाइकोजन इंटेक ज्यादा करते हैं, रेड मीट ज्यादा इंटेक करते हैं, दैट पेशेंट कैन फेस द विक्टिम ऑफ हैविंग द हाई अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? क्या होता है भाई कसम? ग्लाइकोजन व्हाट इज इट? शारिक, उरूज इज द What is that? Glycogen. Glycogen क्या बताया अभी? अरे भाई ग्लूकोज की फॉर्म तो होती है जो कलेजी ज्यादा खाने से हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली राइट। तो आजकल अगर जो भी कोई एब्डोमिनल पेन पर मुब्तला हो रहा है, जिसके साइड में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मिडिल एजर्स, तो क्लास दैट पेशेंट देयर कुड बी द रीजन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, जिनमें यूरिक एसिड हाई हो सकता है, और इस हाई यूरिक एसिड की वजह से उनकी किडनीज में क्या फॉर्म हो चुका है? स्टोन फॉर्म हो चुका है। दैट कुड बी द वेरी हर्डल इन देयर यूरिनेशन, जो बहुत ज्यादा हर्डल करेगा, पेन प्रोड्यूस करेगा इन देयर यूरिनेशन। तो दैट इज द थिंग व्हिच यू गोना हैव टू रिमेंबर कि ये यूरिक एसिड फॉर्म कैसे हो रहा है सर। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। हाई यूरिक एसिड की वजह से बॉडी स्वेल हो सकती है, फीट स्वेल हो सकता है, जो फीट है वो स्वेल हो सकता है, दैट कुड बी द रीजन। फीट स्वेल हो सकता है, फीट फिंगर्स हैं मूव नहीं कर सकते, फीट के फिंगर्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, ये एक रीजन है। एक और मेरे पास सवाल आया, वो क्या था मैं देखूं। सर ये इतना रैपिड होता है? हफ्सा ये रैपिड हमें नहीं होगा, ये रैपिड होगा मिडिल एजर्स में। मिडिल एजर्स जो होते हैं 40 अबव, उन पेशेंट्स में ये टारगेट हो सकता है जो लीडिंग टू एजिंग है।
लीडिंग टू एजेड है या फिर एजेड पीपल्स हैं, उनमें ये होता है। तो उनमें ग्रेजुअली नहीं होता, उनमें भी उनके सिस्टम्स इस लाइक अब नहीं होते कि वो हाई कंसंट्रेशन को फेस कर सके। तो दैट कुड बी द रीजन अफसा। और ग्रेजुअली नहीं होता मतलब अगर आपकी यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन आप बहुत ज्यादा एक लेवल से ज्यादा ले लो ना, बकरीद में होता क्या है, सुबह शाम हम खा रहे होते हैं, ठीक है ना, कभी बारबेक्यू है, कभी कोई चीज है, तो ये अपने ऑब्जर्वेशंस में रखो ये सारी चीजें। पेशेंट इसीलिए रेड मीट नॉर्मल कंडीशन में तो रेड मीट इतना ज्यादा इंटेक नहीं करता, चलो एक सुबह खा लिया तो सॉरी दिन में खा लिया तो रात में नहीं खाता। मीट की बात कर रहा हूँ मैं, रेड मीट की। चिकन तो चलो चलती है, लेकिन रेड मीट चलो एक दिन दोनों टाइम खा लिया, अगले दिन तो अवॉइड करेगा वो, इस तरह अवॉइड हो जाता है। लेकिन अगर मैं बकरीद की सीजन की बात करता हूँ तो उसमें अवॉइड करना मुश्किल होता है। सुबह भी वही चल रहा है, रात में भी वही चल रहा है, नाश्ते में भी वही चल रहा है। तो क्लास इट कैन लीड द फॉर्मेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड। और हाँ, फीट वगैरह के फिंगर्स मूव नहीं करते, जॉइंट पेन प्रॉब्लम भी आ सकता है यूरिक एसिड की वजह से। जॉइंट्स में जाके जमा हो सकते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स के भी जमा हो जाते हैं, फिंगर्स में भी जमा हो सकते हैं, फीट के फिंगर्स में भी जमा हो सकते हैं। तो इट कैन लीडिंग प्रॉब्लम। और यही रीजन होता है द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन आफ्टर द बकरीद। हमारे पास कोई भी पेशेंट आ रहा होता है बकरीद के बाद, पेरिटोनियल कैविटी में दर्द बता रहा होता है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई इसने गोश्त ज्यादा खाया, इसने कलेजी ज्यादा खाई एंड हैविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ। तो हम पहले उसका यूरिक एसिड टेस्ट करवाते हैं, यूरिक एसिड क्रिएटिनाइन ज्यादा बढ़ा हुआ आता है तो हम उसको कहते हैं कि फ्यूरिसमाइड। अब देखो जो बुक के अकॉर्डिंग अभी ट्रीटमेंट बताई जा रही है दैट इज समवॉट अबाउट लिथोट्रिप्सी, लेकिन हम उसको भी ऑब्सोल्यूट कर चुके हैं क्योंकि अब हमारे पास इतनी अवेलेबल ड्रग्स मौजूद हैं जो हमारे पास रैपिड एक्शन देती हैं, जो हमारे स्टोन को जाके ब्रेक करती हैं और उसको यूरिन के थ्रू पास ऑन करवाती हैं। खैर, अच्छा, क्लास आई हैव ओनली क्रिएटिनाइन दैट इज आल्सो बीइंग इनटेक बाय द मसल्स। ये प्रोटीन इनटेक की वजह से, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है ना शारीरिक, प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन ब्रेक होता है, मेटाबोलाइज होता है, सो इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड एज वेल एज इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिनाइन एज वेल। ठीक है, और ओके, तो मेरे पास लेस देन 1 मिनट हो गया। अब टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द 70% deposition of calcium oxalate। तो यहाँ पे देखो क्लास, वी हैव अ certain compound, certain mineral that is called what, calcium। फिर वही बात कि अगर कैल्शियम बॉडी में ज्यादा है और विटामिन डी नहीं है तो बॉडी इसको क्या करेगी, बॉडी इसको रख के बॉडी इसको खुद तो एब्जॉर्ब नहीं करवा सकती ना बोन्स में, बॉडी इसको क्या करेगी, रिलीज आउट करेगी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम रीचेस ऑन टू द लेवल ऑफ किडनी। ठीक है, मैक्सिमम कैल्शियम कहाँ मूव कर रहा है, किडनी की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास एक और कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। we have one more compound over here that is called what, oxalic acid। देखो भाई, मैं तुम लोग को यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज, मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? यस क्लास, फर्स्ट यू कैन हैव टू इन्फॉर्म मी अबाउट व्हाट। तो ये अच्छा, अब यहाँ पे देखो ऑक्सलेट एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ही क्या, ऑक्सैलिक एसिड। whenever you found a word with a suffix मतलब आखिर में अगर किसी वर्ड के आ रहा है ate, the second tense of ate आ रहा है कहीं पे, तो class it refer to be as, so what, it refer to be as acid। तो we have the two compound, one is what, one is calcium, one is oxalic acid। ये दोनों अनडिफ्यूजिबल कंपाउंड है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, अगर कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा है बॉडी में और विटामिन डी कम है तो क्लास द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम वुड नॉट बी गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द बोन, इट विल बी गोज ऑन टू द किडनी टू एक्सक्रीट इट आउट। लेकिन भाई कैल्शियम चूंकि एक इंपॉर्टेंट हमारे पास मिनरल है जो कि ना सिर्फ बोन्स को हेल्दी करता है बल्कि हमारी मसल्स मूवमेंट, हमारे नर्व इंपल्स सबके लिए जरूरी है। तो वो डीसीटी बाय मींस ऑफ द एक्शन ऑफ अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड पैराथॉर्मोन उसको रीअब्सॉर्ब करता है। और ये कैल्शियम वाटर में इनडिफ्यूजिबल होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। और साथ साथ अगर वहां पे एक कंपाउंड आ जाए जिसको आप कहते हो ऑक्सैलिक एसिड। अभी ऑक्सैलिक एसिड कहां से आया, कैल्शियम। हम कैल्शियम कैसे आ सकता है हमारी बॉडी में? यस क्लास, व्हाट इज द सोर्स बाय व्हिच वी कैन गेट द कैल्शियम? सर मिल्क, एग्जैक्टली राइट, मिल्क, बिल्कुल ठीक, मिल्क द प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट दैट वुड बी रिच इन कैल्शियम। अच्छा जी, और ऑक्सैलिक एसिड ये कहां से आएगा भाई? हाउ वी कैन गेट द ऑक्सैलिक एसिड, हाउ वी कैन गेट द ऑक्सलेट? ओके, वेजिटेबल्स वगैरह से। एग्जैक्टली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मैं टोमेटो को भी इंक्लूड करता हूँ, और स्पिनच, लेटस, कैबेज, दैट इज ऑल द थिंग बाय व्हिच वी कैन गेट द ऑक्सलेट। इन सब से हमें क्या मिल सकता है, ऑक्सलेट मिल सकता है।
याद रखिएगा ऑक्सैलिक एसिड एंड कैल्शियम बोथ वुड बी इनडिफ्यूजिबल, ये बहुत ज्यादा इनडिफ्यूजिबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, और अगर इनकी कंसंट्रेशन एक साथ किडनी में ज्यादा हो जाती है, सो दे आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड और कंपाउंड referred to be as what? That compound referred to be as calcium oxalate. And when the concentration of calcium oxalate reaches up to 70%, then it forming a stone, that is called what? Kidney stone. इससे भी हमारे पास क्या हो सकता है? Stone form हो सकता है, that is called what? Kidney stone. So we gonna have to take the green leafy vegetable, but we gonna have to intake the lot amount of water as well. हमें अगर green leafy vegetables ले रहे हैं, in order to excrete out the oxalate, we gonna have to drink the lot amount of water. देखो भाई, kidney problem या kidney stone form होने की वजह ही क्या है? The reason is that for taking the low amount of water. लो अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो क्लास दैट कुड बी द रीजन ऑफ फॉर्मिंग द किडनी स्टोन. ये चीज एक्सक्रीट आउट ही नहीं होगी तो किडनी पे क्या हो रही है? डिपॉजिट हो रही है, इनडिफ्यूजिबल है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, डिपॉजिट होती रहेगी. वाटर कम है तो इनको वो एक्सक्रीट आउट नहीं करवा सक रहा. तो क्लास that bond calcium oxalate when its concentration reaches up to 70%, it forming a stone, that is called what? Kidney stone. देखो भाई, 3 reasons of forming kidney stone we have over here. Number 1, the 70% deposition of calcium oxalate. मैंने बता दिया. Calcium you can get it from the dairy product, dietary source, और oxalic acid you can get it from the green leafy vegetable. दोनों compounds water में dissolve नहीं हो सकता, और जब ये दोनों compounds आएंगे किडनी पे और पेशेंट की हैबिट लो इनटेक ऑफ वाटर होगी तो वो कभी भी इन कंपाउंड्स को अपनी किडनी से excrete out नहीं करवा सकेगी, which could be the result of the deposition, and when that deposition reaches up to 70%, this could lead the formation of kidney stone. Uric acid का मैं बता चुका हूँ. Infective stone की बात करेंगे. Plus infective stone would be formed by the deposition of magnesium and infective stone. अरे ये infective stone तो मैंने लिख दिया, magnesium and ammonium ions. Ammonium ions, magnesium, that also could be the reason of forming the kidney stone. So what is ammonium ion and how does it would be formed? Ammonium ion, yes class, what is ammonium ion basically? Ammonium ion इनमें से कौन सा होगा? NH, NH2, NH3, NH4 या फिर NH5? Yes class, what is ammonium ion over here? कौन सा है भाई? Yes class. NH4 positive. NH4 पॉजिटिव नहीं होता, NH4 एरो अहेड होता है, हमेशा ये याद रखना. अमोनियम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर रहा है, तो दैट इज नॉट फॉर्मिंग पॉजिटिव, दैट इज फॉर्मिंग एरो अहेड, जिसको शो करते हैं कि ये अमोनियम आयन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, ये याद रखना. तो दैट इज अमोनियम आयन व्हिच कुड बी फॉर्म बाय द हाई इनटेक ऑफ अमोनिया इनटू द बॉडी. अगर बॉडी में अमोनिया ज्यादा है, बॉडी में अमोनिया रहने की वजह क्या? कि पेशेंट की किडनी से ही वर्किंग नहीं कर रही, लंग से ही वर्किंग नहीं कर रहा, लिवर से ही वर्किंग नहीं कर रहा, ब्रेन से ही वर्किंग नहीं कर रहा. Yes class, what is the reason of having a high amount of liver सही नहीं कर रहा. अगर liver सही working नहीं करेगा, body having the high amount of ammonia which can be converted into the ammonium ion, and when that ammonium ion link up with one of the mineral that is called magnesium, and when its concentration reaches up to 20%, it forming a stone. That stone is called what? That stone is called infective stone. Class, ये तीनों reasons मैंने तुम लोगों को दे दिए of forming the kidney stone. Number 1 is 70% deposition of calcium oxalate, 20% infective stone, and 5% would be the deposition of uric acid. इनमें से कोई भी reasons में अगर stone form हो जाता है तो क्या करो? Yes class, इनमें से अगर किसी भी reason से अगर stone form हो जाता है, so what would be the thing you're gonna have to do for that? सर पानी का इंटेक ज्यादा करेंगे. ऐसे तो stone जाएगा नहीं, stone है लड़की, stone. सर जब कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट से मिल रहा है तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से तो मिलता है. सर इसको ब्रेक डाउन करेंगे, स्टोन्स को ब्रेक डाउन करने की सनलाइट से, मेथड. हाँ, स्टोन को ब्रेक डाउन करें. हफ्सा सनलाइट इज अ वेरी प्रीमियम सोर्स ऑफ गेटिंग द विटामिन डी, ठीक है. हाँ, तुम लोग क्या कह रहे हो भाई? उन्होंने अभी जो कहा वो दोबारा से रिपीट करो. सर हमने कहा कि हम ब्रेक डाउन करेंगे स्टोन्स को. कैसे करोगे? सर के डिफरेंट मेथड्स हैं. जैसे कि ट्रिप्सी भी है, लेजर से उसको ब्रेक डाउन करते. देखो, अ वेरी फर्स्ट टेक्निक व्हिच वी गोना हैव टू मेक इट, दैट इज द सर्जरी. पहले हम क्या करते थे? सर्जरी करते थे, लैप्रोस्कोपी करते थे. पेरिटोनियम्स पे हम ब्लेड लगाते थे, सिजर करते थे. तो सिजर करते थे बेसिकली उस पार्ट को ओपन करते थे और उसमें से स्टोन्स को रिमूव करते थे. तो वो एक बहुत बड़ा और थोड़ा सा
क्या कहते हैं, लाजमी सी बात है सिजर लग रहा है तो पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो वो थोड़ा सा एक हर्डल प्रोसेस होता था, ऑपरेट करते थे, पूरा सर्जरी करते थे पहले। उसके बाद रेडियोथेरेपी which you have studied on your first chapter first year, radiotherapy एक टेक्निक अप्लाई की गई, radiotherapy in which we perform the treatment by means of radioactive rays, laser rays, आपकी बुक में लिखा हुआ है अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिसमें दो ट्यूब्स, दो पोरिफ्रेशन हम पहले बनाते थे, पहले की जो टेक्निक थी दो पोरिफ्रेशन बनाते थे लिथोट्रिप्सी की, जिसमें से एक पे हम कैमरा इंट्रोड्यूस करते थे, एक ट्यूब में हम कैमरा इंट्रोड्यूस करते थे, वो ट्यूब से कैमरा जो है स्टोन को लोकेट करता था, दूसरे ट्यूब में अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट होती थी, जैसी स्टोन लोकेट हुआ हमने उस पर अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट किया और उसने स्टोन को ब्रेक कर दिया एंड दैट स्टोन विल बी रिमूव आउट बाय मींस ऑफ यूरिन। फिर ये टेक्निक और एनहांस होती गई और उसके बाद हम दो पोरिफ्रेशन बनाते थे, दो ट्यूब्स के लिए, एक में कैमरा और एक में रेडियो एक्टिव रेज होता था। अब टेक्नोलॉजी एनहांस हुई तो एक ही ट्यूब हम इंसर्ट करते थे जिसमें कैमरा भी होता था और अल्ट्रासोनिक वेव्स भी होती थी। और अब इस टेक्निक को भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ऑब्सोल्यूट कर दिया है बाय मींस ऑफ लेटेस्ट ड्रग्स, लैसेक्स वगैरह बहुत ज्यादा लेटेस्ट ड्रग्स मार्केट में अब आ चुकी हैं, फ्यूरोसेमाइड वगैरह जो है। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स सॉल्युबलाइज करती हैं स्टोन को या फिर प्रेशर बढ़ाती हैं वाटर का टुवर्ड्स द स्टोन। तो लाजमी सी बात है वो स्टोन बाय मींस ऑफ द वाटर प्रेशर एंड बाय मींस ऑफ डिफ्यूजिबिलिटी वो ब्रेक होता है, टूटता है और यूरिन के थ्रू पास हो जाता है और लिथोट्रिप्सी की भी जरूरत पेशेंट को अब नहीं पड़ती। तो दैट इज समव्हाट वी हैव रिगार्डिंग अबाउट फॉर द किडनी प्रॉब्लम, रिगार्डिंग अबाउट फॉर किडनी स्टोन। कोई मसला यहां तक? सर किडनी स्टोन्स को कैलकुलाई भी बोलते हैं? कैलकुली इन्फेक्टिव स्टोन को कहता है। कैलकुली जो बेसिक वर्ड दिया जाता है दैट इज समव्हाट अबाउट फॉर इन्फेक्टिव स्टोन। हाँ आप इसको भी कह सकते हो भाई, जो भी आज का। हाँ देखो पहले मैं कैलकुली के बारे में बता दूं, कैलकुली दैट वुड बी द स्टोन ऑफ द किडनी, मोस्टली वी नेम इट फॉर द इन्फेक्टिव स्टोन, ठीक है। और आज का लेक्चर अपलोड कब होगा, मैं सोच रहा हूँ कि कल डायलिसिस पढ़ लो तो उसके बाद एक साथ अपलोड मर्ज करके अपलोड कर देंगे ना, तो फिर पढ़ने में आसानी होगी। क्या कहते हो, ऐसा करें या ना करें? ओके तो और कोई मसला और कोई सवाल? सर किडनी स्टोन और इन्फेक्टिव स्टोन में क्या डिफरेंस है? किडनी स्टोन दैट इज इन्फेक्टिव स्टोन ही, किडनी वो सब पार्ट है इन्फेक्टिव स्टोन। जिसको जो इन्फेक्टिव स्टोन है वो फॉर्म हो रहा है अमोनियम आयन से, वो उसमें चांसेस होते हैं इन्फेक्शन प्रोड्यूस होने की क्योंकि इट इज द सब ड्राइव फॉर्म ऑफ अमोनिया, सब ड्राइव फॉर्म है अमोनिया की, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इन्फेक्टिव स्टोन। इट इज अ सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ किडनी स्टोन। ये भी किडनी स्टोन है लेकिन इसको एक नाम दे दिया गया इन्फेक्टिव स्टोन का। और कोई सवाल? देखो भाई ये कंसंट्रेशन तुम लोग को याद रखनी है, सोर्सेस मैंने बता दिया है। यूरिक एसिड 5% डेपोजिशन से फॉर्म करता है किडनी स्टोन। यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों होगी? बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। पेशेंट हाई ग्लाइकोजन और प्रोटीन इंटेक करेगा तो यूरिक एसिड बढ़ाएगा अपना। इन्फेक्टिव स्टोन अगर लिवर खराब है तो अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अमोनियम आयंस क्रिएट होंगे एंड व्हेन दैट अमोनियम आयन ब्रेक विद द मैग्नीशियम एंड प्रोड्यूसेस द इन्फेक्टिव स्टोन व्हिच कैन प्रोड्यूस इन्फेक्शन ऑनटू द किडनी एज वेल। और 70% of deposition of calcium oxalate when the concentration of calcium which is indiffusible in water and oxalic acid which is also indiffusible in water, when they are forming a bond that is called calcium oxalate which cannot be diffused into the water, and when the deposition increases up to 70% it forming the stone that is called the kidney stone. और कोई भी stone form होता है, how we gonna have to remove? According to our book we gonna have to remove it by means of lithotripsy, which is a technique in which we apply ultrasonic waves onto the kidney in order to remove the kidney stone. Yes class, और कोई मसला? सर हम इन किडनी स्टोन्स को मेडिसिन के जरिए नहीं कर सकते अगर इनिशियल स्टेजेस पे हो तो? किसके जरिए नहीं कर सकते? तो मेडिसिन के जरिए। हाँ बिल्कुल मेडिसिन, मैं बोल रहा हूँ ना, अब तो कंडीशन थोड़ी सी माइल्ड भी आ जाए, मॉडरेट भी हो जाए तो भी हम मेडिसिन हमारे पास इस तरह की प्रोड्यूस हो चुकी है दैट वी डोंट हैव टू अप्लाई द लिथोट्रिप्सी। अब जो हमारे पास मेडिसिन अब आ चुकी हैं, फ्यूरोसेमाइड ड्रग्स आ चुकी हैं, उसमें हमें ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यस वी कैन डू इट नॉट ऑन टू द इनिशियल एजेस बट we can use the medicine onto the middle stages as well, क्योंकि अब हमारे पास मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। और कोई सवाल? सर लिथोट्रिप्सी डेंजरस नहीं हो सकती क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल रेडियो एक्टिव वेव्स यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली दैट इज अ पॉइंट दैट कैन प्रोड्यूस द रेडिएशन, आयनाइजेशन अंदर कर सकता है, जाके म्यूटेजेंस प्रोड्यूस कर सकता है। तभी मैंने आप लोगों को बताया कि अब जो हमारे पास ड्रग्स हैं which so called medicine what you can say Lasix furosemide drugs जो हैं, तो वो लूप डायूरेटिक्स जिनको हम कहते हैं, तो वो अच्छा पहले मारूफ मैं इसका बता दूं, लूप डायूरेटिक्स जो हमारे पास फ्यूरोसेमाइड ड्रग्स हैं,
आजकल हम उनको ही देते हैं, तो ही उससे जो प्रेशर है किडनी का स्टोन की तरफ वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टोन ब्रेक हो जाता है। तो यस, दैट इज द थिंग व्हिच कैन डिस्करेज लिथोट्रिप्सी। ये मेडिसिन का यूज हमें लिथोट्रिप्सी करवाने को डिस्करेज करता है। और यस, लिथोट्रिप्सी कैन बी इन्फेक्टिव या कैन बी म्यूटेजेंस या कैन बी प्रोड्यूसिंग कैंसर, क्योंकि रेडिएशन है, लाजमी बात, अंदर जाएंगी तो कुछ ना कुछ वो हर्डल कर सकती है। यस, इट कैन बी। लेकिन इसीलिए मैंने बताया कि जो अब हमारे पास ड्रग्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो इन सारी लिथोट्रिप्सी को डिस्करेज करती हैं। अब ये सारी चीजें ड्रग्स से, मेडिसिन से ही कंट्रोल हो जाती हैं। और किडनी स्वेल, यस अरीशा, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चन। मारूफ ने एक क्वेश्चन पूछा, सर किडनी स्वेल होने का रीजन क्या होता है? देखो भाई मारूफ, कोई भी चीज अगर स्वेल हो रही है, इट मींस देयर इज एन इन्फेक्शन प्रोड्यूस ऑन दैट। अगर कोई भी चीज स्वेल हो रही है, मेरा हाथ सूज रहा है, मतलब आई हैव एन इन्फेक्शन ऑन दैट, मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो सकता है, तभी वो चीज क्या करिए, स्वेल हो रही है। स्वेल करिए तो मैं उस चीज को, वो चीज ग्रो नहीं करी, मतलब उस चीज में कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं उससे वर्किंग सही तरीके से नहीं ले सकूंगा। मेरा हाथ अगर स्वेल हो रहा है तो मैं उस हाथ से सही से लिख नहीं सकूंगा। इन्फेक्शन लीडिंग द स्वेलिंग, ये बात याद रखना। हेपेटाइटिस, लिवर स्वेलिंग, लिवर इन्फेक्शन, जिसकी वजह से लिवर क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। इसी तरह किडनी में भी अगर इन्फेक्शन होता है, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया अफेक्ट करता है किडनी को, अटैक करता है किडनी को, सो दे कैन प्रोड्यूस द एनलार्जमेंट ऑन टू द साइड ऑफ द किडनी व्हिच रेफर टू बी स्वेलिंग ऑफ द किडनी। तो ये स्वेलिंग इन्फेक्शन से इन्फेक्शन पे हम टारगेट करते हैं। और कोई सवाल? जस्ट क्लास। यस अरीशा, यू आर रेजिंग योर हैंड, व्हाट इज बीइंग योर क्वेश्चन? आई थिंक किडनी स्टोन, किडनी प्रॉब्लम के लिए इतना सेशन काफी है। कोई भी सेशन, कोई भी अगर सवाल हो तो यू कैन आस्क मी ऑन टुमारो। और कल इंशाल्लाह हम डायलिसिस, सॉरी किडनी फेलियर के बारे में बात करेंगे। तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ। अक्सर तुम लोगों ने अगर रमजानों में सुना होगा कि खाली पेट बोतल पीने से क्या खराब होता है। डॉक्टर अदीब रजी का कॉल, SIUT की तरफ से नोटिस आया है कि सर गुर्दे, गुर्दे और मैदा होता है वगैरह। हाँ, तो जरा सा कल पढ़ के रखना, इसके बारे में पूछूंगा मैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल बात करेंगे जो मैंने टॉपिक। सर एक बात बताएं। बोलो सर मतलब ह्यूमन की किडनी और मतलब जैसे किसी जानवर की किडनी, जैसे बकरी, गाय वगैरह, उनमें फर्क क्या है? मतलब उनकी एनाटॉमी सेम होती है? नहीं, एनाटॉमी अबाउट टू द साइज फर्क होता है, रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, इनमें फर्क होता है। तो अब ये भी तो कहा जा सकता है सर उनकी किडनी सेम है तो वी कैन इंट्रोड्यूस इनटू द ह्यूमन। नो, देयर इज अ सर्टेन एनाटॉमिकल, देयर इज अ सर्टेन फिजियोलॉजिकल डिफरेंस वी हैव इन दैट, ठीक है ना। उनके एंटीजेंस अलग होते हैं, हमारे एंटीजेंस अलग होते हैं, बायोकेमिकल नेचर उनका थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, हमारा डिफरेंट होता है। तो यस, देयर इज, देखो ना, हाँ बोलो। अब अगर बात की जाए, मैं वही कह रही थी, कैटल्स के हवाले से अगर बात देखो, कैटल्स जो है वो हम तो मीट इनटेक कर रहे हैं ना फॉर गेटिंग द प्रोटीन, कैटल्स तो मीट इनटेक नहीं कर रहे हैं। कैटल्स, अगर गाय बकरी की बात की जाए, वो तो मीट इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो उनमें प्रोटीन फिल्ट्रेट होगा नहीं होगा, व्हाट कुड बी द रीजन, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी गोना हैव टू डिस्कस कि व्हाई देयर इज अ डिसिमिलैरिटी बिटवीन द किडनी ऑफ ह्यूमन एंड द कैटल्स। तो बहुत सारे रीजंस हमारे पास आ जाते हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर शुरू का ऊपर का थोड़ा बहुत सेम हो सकता है, लेकिन जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो थोड़े बहुत डिफर करेंगे, थोड़े बहुत अलाइक भी होते हैं, थोड़े बहुत डिफर भी करेंगे। सो दैट इज द रीजन। और बोलो सर, मतलब उनमें भी मेडुला कॉर्टेक्स वगैरह होंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द सेम थिंग। तो अगर तुम लोग ने किडनी कट किया था, मैं इस दफा लेट हो गया, लेट क्या हो गया मतलब मैं किसी और काम में बिजी था, हो सकता है किडनी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, तो नहीं तो मैं तुम लोगों को खुद दिखाता कि देयर इज अ सर्टेन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स के पार्ट्स बने हुए होते हैं। अगर आप उसका जो, उसमें तो बहुत सारे पायरामिड्स होते हैं ना, तो अगर थोड़ा सा पायरामिड्स कट करते हो सो यू कैन सी द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ऐसे नहीं वो रेशे के फॉर्म में देख रहे होंगे, बट व्हाट वाज दैट, दैट इज द नेफ्रॉन। सर हाँ बोलो। सर मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके घर जो बकरे की कुर्बानी हुई थी, तो उन्होंने ना ये बकरे का जो किडनी होती है और दिल होता है उसको काट के, जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, उसको मतलब बीच में से कट करा था, उसकी पिक्चर है मेरे पास। हाँ, तो यू कैन शेयर इट आउट, शेयर करना उसको, फिर देखते हैं उसमें, बता सकते हैं उसमें, ठीक है ना। और मैंने भी मतलब उसको मतलब खाता था, मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा था, अजीब सा था। मतलब देखो वो बहुत सारे, मतलब नहीं वो जो बहुत सारे डायनामिक्स पार्ट थे ना, डायनामिक्स में ही कहूंगा, तो वो सारे पार्ट्स जो थे वो दैट वुड बी द पायरामिड्स, वो पायरामिड्स थे। तो उसके ऊपर की झिल्ली हटा दी थी, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन हटा दी थी, वो सारे उसमें क्या थे, पायरामिड्स थे, ठीक है। वो पायरामिड्स के ऊपर की लेयर की कॉर्टेक्स होगी, उसके नीचे हमारे पास में मेड्यूला आएगा। तो अगर वो पिक्चर हो तो मुझे शेयर अप करना, आई गोना हैव टेल यू फ्रॉम दैट एज वेल। अगर है पिक्चर तो उसको शेयर अप करना, ठीक है। सर मैंने वीडियो बना ली थी मैं। दैट्स ग्रेट, शेयर अप करना, देखते हैं उसको, ठीक है। ओके सर।
तो वी गोना हैव टू मेक इट टिल ओवर हियर इंशाल्लाह ऑन टुमारो। मैंने जो बात कही उस पर गौर करना, बोतल वाली बातें, ठीक है ना, और उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो टिल देन क्लास टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। आई गोना हैव टू मैन माय मीटिंग ओवर हियर। Let's getting started class. Today we're gonna have to start about for kidney failure. आज हमें जो टॉपिक अपने स्टार्ट लेना है that is somewhat about for kidney failure. So I'm gonna have to ask you about for what could be the possible reason of kidney failure. Kidney failure के क्या reason हो सकते हैं? Any idea about for that class? Yes. What could be the possible reason and what are the reasons of kidney failure? तो पहले यहाँ पे आओ, तुम लोगों को मैं थोड़ा सा रोल प्ले करना सिखाऊं कि यहाँ पे किडनी फेलियर के रीजंस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग आई कैन हैव टू से अबाउट फॉर इन्फेक्शन. Infection play a vital role in performing the kidney failure. The heart problem, high blood pressure, hypertension जिसको आप कहते हो, diabetes, yes, it is also playing a very crucial role in kidney failure. So class kidney failure, that is all the stuff which we have regarding about for kidney failure. Infection, heart problem, high blood pressure, diabetes, that could be the reason of kidney failure. और क्या हो सकता है? If it's stone, kidney stone, not treated properly, अगर किडनी स्टोन को सही वक्त पे सही टाइम पे ट्रीट ना किया जाए, बढ़ने दिया जाए, that it also leads to the kidney failure. Okay, so these are all the problem we have regarding about for kidney failure. अच्छा, now class एजिंग, वन मोर थिंग, एजिंग को भी हम टारगेट आउट कर सकते हैं, एजिंग फैक्टर भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। चलो, दैट इज ऑल वुड बी द प्रॉब्लम, ऑल वुड बी द फैक्टर्स ऑफ हैविंग अ पेशेंट किडनी फेलियर, इन्फेक्शन, हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी स्टोन, सॉरी यहाँ पे किडनी स्टोन नहीं लिखा है, किडनी स्टोन not treated properly, so that could also result in kidney failure. अच्छा जी, aging, that is also the victim, that the patient also, if they are not care their kidney, so they can also lead kidney failure on their aging purpose, on their aging. अच्छा, अब देखो क्लास, किडनी फेल अगर हो जाती है, so what happen if the patient kidney fail, the patient having a high amount of urea, uric acid, ammonia in their blood, मतलब the blood would not be filtered, और अगर blood filter नहीं होगा, so the blood become what? The blood become toxic, and if the blood become toxic, the patient having a serious or the crucial conditions in their body. तो क्लास किडनी फेलियर, अगर ये किडनी फेलियर होता है, इन्फेक्शन, अब मैं तुम लोगों को इन्फेक्शन से रिगार्डिंग एक किडनी फेलियर की कंडीशन यहाँ पे इन्फॉर्म करता चलो। देखो, हम लोग अपने लास्ट ईयर में वार्ड्स वगैरह का विजिट करते हैं, ठीक है ना, तुम लोग भी करोगे इंशाल्लाह व्हेन यू गो ऑन टू द प्रोफेशनल मेडिकल फील्ड। तो हम डायलिसिस के वार्ड पे मूव कर रहे थे, हमें एक यंग बंदा नजर आया। अब यंग बंदा डायलिसिस करवा रहा है, हमने सोचा कि इससे थोड़ी बहुत बात करता है, तो वी गोना हैव टू टेक द केस हिस्ट्री। उस वक्त हमें केस हिस्ट्री वगैरह लेनी होती है और हमें रीजंस पता करने होते हैं, हमें अपनी क्लिनिकल्स जिसको हम कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग करनी होती है। तो हमने उस पेशेंट से बात करना स्टार्ट की कि व्हाई यू आर बीइंग ओवर हियर, तो उसने बोला भाई किडनी फेल, माय किडनी फेल्स अप टू अप्रॉक्स 70 to 80%। तो हमने पूछा कि भाई वजह क्या है, क्या वजह है? उसने बोला कोई वजह ऐसी नहीं थी, मतलब मुझे तो कोई ऐसी वजह नहीं समझ में आई। डेज बैक 6 मंथ, मतलब अर्ली 6 मंथ, मतलब 6 महीने पहले उसको एक पैर में दाना रिपोर्ट हुआ, पैर में एक स्वेलिंग रिपोर्ट हुई, और पैर में स्वेलिंग थी, वो समझा एक दाना है, और हो कहाँ पे रहा है? देखो पैर में हो रहा है, ठीक है, पैर में स्वेलिंग फॉर्म हो रही है, स्टोन फॉर्म हो रहा है। तो वो बोलता है, वो समझा अपनी थिंकिंग के हवाले से कि कोई हो सकता है मुझे चोट लगी हो, मैंने बहुत ज्यादा वर्किंग कर ली हो, मैंने जूते खराब हो गए हो या जूते सूट नहीं कर रहे, तो दैट कुड बी द थिंग कम ऑन टू दैट पेशेंट माइंड। तो उसने बोला मैंने बाम लगा लेता था, जूते चेंज कर लिए, ये सब मैं कर रहा था, और आफ्टर 4 to 5 months मुझे बुखार आने लगा, और बुखार के साथ मुझे डायरिया होने लगा, और ये सारी कंडीशंस मुझे होने लगे, और ये कंडीशंस थम नहीं रही थी, खत्म नहीं हो रही थी। तो मेरा एक थॉरो चेकअप कराया गया, तो मेरे यूरिया, क्रेटिनाइन, अमोनिया, ये सारी चीजें बढ़ी हुई आई। तो at that time class, when the certain tests are being performed on to checking the kidney, तो class उसकी किडनी shrink हो चुकी थी, उसकी किडनी फेल हो चुकी थी, up to 70 to 80% of the kidney would not perform its working. तो class that is somewhat the thing which we have reported. Infection कहाँ हो रहा है? पैर में हो रहा है। Infection can lead to where? It can lead to attack on kidney as well. वो infection बढ़ते हुए कहाँ पे आएगी? It can reaches to the kidney, and 70 to 80% of the patient's kidney at that time would be fail.
अब किडनी फेल हो गई, क्या होगा, पेशेंट का टॉक्सिक मटेरियल उसकी बॉडी में जमा हो रहा है, यूरिया जमा हो रहा है, यूरिक एसिड जमा हो रहा है, अमोनिया जमा हो रहा है, सो इट कैन प्रोड्यूस प्रॉब्लम इन द पेशेंट अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो क्लास दैट इज ऑल्सो व्हाट द रीजन, हार्ट प्रॉब्लम। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल की अगर हवाले से मैं बात करूं तो कंडीशनिंग कभी ऐसा होता है कि दैट इज समवॉट द किडनी, देख सकते हो, दैट इज समवॉट वी हैव द किडनी। मैं यहाँ पे जो चीज बना रहा हूँ तुम लोग इसको टारगेट कर दोगे फॉर, दैट इज व्हाट इज दैट इज द रीनल आर्टरी। थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, कॉम्पैक्ट कर, दैट इज व्हाट, दैट इज द रीनल आर्टरी। और मुझे बताओ रीनल आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द ब्लड और रिटर्न द ब्लड टू द बॉडी। मतलब किडनी से इसमें ब्लड आता है या जाता है? यस क्लास, either the blood comes from the renal artery or it goes away from the renal artery. Renal artery से blood आ रहा होता है या जा रहा होता है? Yes class, I am waiting for your response. तुम लोग बोल रहे हो मुझे आवाज नहीं आ रही है, so you can write it down onto the chat box. अगर बोल रहे हो मुझे आवाज नहीं आ रही है तो you can inform me onto the chat box. Chat box में अपना पार्ट लिख सकते हो तुम लोग। Class, I cannot get you over here. Okay. You can say it onto the chat box. Chat box में मुझे सारे आंसर्स मिल रहे हैं। तो रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे रीनल आर्टरी में कोई अगर हमारे पास थ्रोम्बस फॉर्म हो जाए, कोई कोलेस्ट्रॉल का पार्ट फॉर्म हो जाए, तो व्हाट हैपन, आइदर द ब्लड कम्स और आइदर द ब्लड स्टॉप। क्या ब्लड किडनी पे आ सकेगा या ब्लड स्टॉप हो जाएगा? अगर यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म हो जाए रीनल आर्टरी में, तो क्या ब्लड आइदर द ब्लड रीचेस टू द किडनी, क्या ब्लड किडनी तक पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा? यस शारिक, इफ यू आर बीइंग देयर, no, it could not be reaches to the kidney. So at that time, when the blood cannot reaches on to the kidney fail to get the nutrition. Kidney blood तो filter करेगा नहीं, लेकिन साथ साथ kidney को nutrition भी नहीं मिल रही, oxygen भी नहीं मिल रही, and that could be the reason of what, kidney failure. Heart problem, high blood pressure, diabetes, high glucose level. अगर किडनी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो रहा है तो वहां पे इंफेक्शन प्रोड्यूसेस हो सकता है, ठीक है। तो डायबिटीज आल्सो प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इनटू द किडनी। और अगर किडनी स्टोन नहीं ट्रीट किया जाए प्रॉपर्ली, कौन सा किडनी स्टोन, मैं यहाँ पे इंडिकेट करता जाऊं, इन्फेक्टिव स्टोन। इन्फेक्टिव स्टोन को अगर हमने प्रॉपर्ली सही से ट्रीट नहीं किया तो इट कैन लीड्स टू द किडनी फेलियर एंड एजिंग। यस, एजिंग, उम्र के साथ साथ सारी चीजें वीक होती जाती है, तो भाई किडनी भी वीक होती जाती है, तो इसको हमें बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है। अच्छा, अब चलो मैं बात करता चल रहा हूँ क्लास, किडनी फेल हो गई है एक बंदे की, सो डॉक्टर एडवाइज देम टू डू व्हाट, डॉक्टर एडवाइज देम टू रिड्यूस देयर डाइट एंड फ्लूइड इनटेक। देखो भाई, जब पानी कहा जाता है कि पियो, किडनी के लिए फायदेमंद है, उस वक्त नहीं पियोगे तो जब किडनी खराब हो जाएगी तो भी हम पानी को ज्यादा नहीं कर सकते, पानी बॉडी में कम रखना होता है। मुझे अब बताओ कि नॉर्मली हम कितने ग्लासेस ऑफ वाटर इनटेक करते हैं? पानी मेरा भी खत्म हो गया सर, 7 to 8। और अगर मैं बात करूं किडनी फेलियर और द पेशेंट हैविंग द किडनी प्रॉब्लम, so we're gonna have to restrict the diet of their fluid intake as well. हम सिर्फ fluid intake कहते हैं उनको 500 ml किएगा, इससे ज्यादा नहीं। 500 ml जानते हो कितना होता है? 500 ml is only up to for 2 glass. 500 ml is only about for 2 glass. तुम लोग 500 ml कोल्ड ड्रिंक एक झटके में खत्म कर देते होगे, I bet, ठीक है। और इफ द पेशेंट, और मैं अगर किडनी फेलियर पेशेंट के बारे में बात करूं तो उसको 500 ml पूरे दिन में लेने होता है, और वो एक कंटिन्यूस सिप में पूरा वाटर इनटेक नहीं करेगा, उसको ग्रेजुअली वाटर इनटेक करना होता है, सिप वाइज इनटेक करना होता है, या फिर आइस क्यूब्स वो मुंह पे रख ले, तो ये कंडीशन होती है। तो कंडीशन बिकम वेरी टफ। डाइट तो उसको कंट्रोल करनी है, देखो ना, नॉट इनटेक द रेड मीट तो सीरियसली मना होता है, ग्लाइकोजन, पोटेशियम, दीज आर ऑल द स्टफ व्हिच हैव टू बी क्विट। बनानास वो इनटेक नहीं कर सकता, पोटेशियम बढ़ेगा, मैंगोज नहीं ईट कर सकता। तो दैट इज सर्टेनली द condition which we have facing onto the patient of kidney failure. अब चलो patient की kidney fail हो गई. Now class, what we gonna have to do with that? We being the medical professional, so what we gonna have to suggest to the patient? What are the things we have in treating the kidney? How we gonna have to treat the kidney failure patient? What are the ways we have? क्या ways है हमारे पास? Kidney failures, these are all the reason. Kidney fail हो जाए, patient को diet और fluid intake में हमें cover up करना है, लेकिन
लेकिन उसका ब्लड भी तो प्योर करना है, उसके ब्लड में जो टॉक्सिसिटी है उसको भी तो रिमूव करना है। उसके लिए हमारे पास कौन कौन से वेज हैं? यस क्लास, तुम लोग चैट बॉक्स में अगर जवाब दे रहे हो तो मैं देख लेता हूँ। नहीं, चैट बॉक्स में सर जवाब नहीं डायलिसिस। दे- ओके, तो इफ द पेशेंट इज बीइंग सफरिंग फ्रॉम द किडनी फेलियर कंडीशन, तो तुम कह रहे हो कि डायलिसिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग माइक में कह सकते हो, मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम मेरे ख्याल से मेरा हेडफोन का कम हुआ था। ओके, तो ट्रीटिंग किडनी फेलियर कंडीशन, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। तो मैं यहाँ पे एक पोल रेस करना चाहूंगा कि इन ऑर्डर टू ट्रीट किडनी फेलियर, ठीक है, in order to treat kidney failure condition, we have the two things right here. One is treatment of kidney failure. One we have, that is dialysis, and one we have transplantation. Dialysis, we're gonna have to make it transplantation. Dialysis तो हम dialysis machine में करेंगे, transplantation we're gonna have to. Class, do you know about for transplantation? What is transplantation? Any idea about for that? ट्रांसप्लांटेशन का किसी को आइडिया है? what do you mean by the word transplant? न्यू किडनी लगाना मतलब मार्केट से ब्रांड न्यू किडनी खरीदना और जाके लगा देना, ऐसे ही है? सर ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करके और जो उस बंदे का ब्लड ग्रुप है उस हिसाब से उसकी किडनी को ट्रांसप्लांट करना। हर चीज मैचेस करना पड़ती है पहले किडनी के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे बताओ, what is the suitable way of treating the kidney failure patient? Transfer of healthy person's organ to the one, मतलब we can survive, we have 2 kidney, और अगर हम एक किडनी किसी को डोनेट कर दें तो हम अपनी एक किडनी पे सर्वाइव कर सकते हैं और दूसरा बंदा हमारी किडनी पे सर्वाइव कर सकता है, ऐसा ही है क्लास। तो the transferring of organ not to the infected but to the failure patient, infected अलग हो जाएगा, ठीक है ना? उरूज, you are saying safe is dialysis not for transplantation. तुम कह रही हो कि डायलिसिस सेफ है, ट्रांसप्लांटेशन भाई एक किडनी लेके जान छुड़ाओ ना सब चीज डायलिसिस में। चलो अगर तुम लोग कह रहे हो डायलिसिस सेफ है तो आओ चलो तुम लोग को पहले डायलिसिस पढ़ाते हैं, फिर तुम लोग मुझे बताना ये सर क्या चीज सही हो सकती है। उरूज इज सेइंग कि सर डायलिसिस इज सेफर देन ट्रांसप्लांटेशन, सो आई एम आस्किंग अबाउट फॉर dialysis. So class, just figure it out that term, what you can make this term dialysis, तुम लोग को इस term में क्या समझ में आ रहा है? But what do we mean by the word dialysis over here? Dialysis से क्या word समझ में आ रहा है? Dialysis, yes class. रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल बाय आर्टिफिशियल। नहीं, सब खत्म करो, मैं बुक की कोई चीज नहीं समझना चाहता। पहले यहाँ पे मुझे बताओ डायलिसिस के वर्ड से तुम लोगों को क्या चीज समझ में आ रही है? Dialysis. Dialysis means breakdown. Breakdown. In other words, we can use the word removal. या फिर removal हम कह सकते हैं removal, or we can say separation. Dia means two removal, two separation. We know very well that the two fluids are being moving and we're going to have to move what? And we're going to have to perform what? Separation. Removal of liquid, removal of impurity from the blood. अब यहाँ पे देखो class, what are two we have? देखो, one we have the nephron. अगर हम बात देखते हैं तो एक हमारे पास normal functions में हमारे पास क्या होता था? Nephron होता था, and another one we have the blood vessels. Another one what we have the blood vessels. So class, what does nephron do? Nephron takes all the selective waste from the blood vessels. Nephron क्या करता था? जितने भी selective waste होते थे वो blood vessels से ले लेता था और blood vessels से जो भी blood होता था उसको वो pure कर देता था। तो class, the two filtrate are being moving. One is nephron and one is blood. दो filtrate हमारे पास move कर देते हैं। Dialysis is a separation technique. Dialysis क्या है? Separation technique है। यहाँ पे हमारे पास nephron मौजूद नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास nephron की जगह कंपाउंड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं डायलासेट। यहाँ पे हमारे पास जिस तरह हमारे पास नॉर्मल वर्किंग में हमारे पास नेफ्रॉन मौजूद होता था,
which is responsible to take the waste from the blood. But in dialysis, we have the dialysate except for the nephron, which is responsible for removal or separating the waste from the blood. Dialysis, removal of waste. अब यहाँ पे देख सकते हो, we have the two things are being moving. One is dialysate and one is blood vessel. So class, the blood vessels, the dialysate can take all the impurity from the blood and makes the blood clean. अब एक और टर्म मैं तुम लोग को बता, एक और टर्म क्या, बल्कि डायलिसिस एक टर्म है जिससे मेडिकल टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होती. ये फिल्ट्रेशन टेक्निक है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यूज होती है. ऑटोमोबाइल में कैसे? तो क्लास मैं यहाँ पे तुम लोग को बताता जाऊं कि जब हम गाड़ी का, अपनी कार का ऑयल चेंज करते हैं, तो फिर क्या होता है फिजा? फिर क्या होता है? ऑयल चेंज करते हैं तो क्या होता है? ऑयल चेंज के साथ साथ और क्या चीज चेंज करता है? शारिक, एक ही लड़का है हमारे पास, अगर कोई बता सके. देखो भाई, जब हम गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं तो साथ साथ गाड़ी का ऑयल फिल्टर भी चेंज होता है. ठीक है, वो ऑयल फिल्टर भी क्या कर रहा होता है? डायलिसिस कर रहा होता है. अब ये तो नहीं है ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि गाड़ी में क्या किडनी लगी हुई है. तो क्लास, रिमेंबर अबाउट वन थिंग कि डायलिसिस इज नॉट ओनली अ मेडिकल टर्म, इट्स अ वेरी ह्यूज टर्म विच इज यूज फॉर फिल्ट्रेशन. ये एक बहुत ह्यूज टर्म है जिसको आप फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हो. ठीक है, किसी भी चीज की फिल्ट्रेशन के लिए. गाड़ी में ऑयल को कौन फिल्टर कर रहा है? ऑयल फिल्टर फिल्टर कर रहा है. ठीक है, तो दैट ऑयल फिल्टर परफॉर्मिंग द वर्किंग ऑफ डायलिसिस. डायलिसिस, व्हाट इज दैट? इट इज अ फिल्ट्रेशन टेक्निक. ये एक बहुत ह्यूज पैरामीटर में ये वर्ड यूज होता है. इट इज अ फिल्ट्रेशन टेक्निक. What is dialysis actually, by the way? It is a filtration technique. हम मेडिकल टेक्नोलॉजी में इस डायलिसिस को यूज करते हुए किस चीज को प्योरीफाई करेंगे? We're gonna have to purify our blood. To those patient कि जिनकी किडनी वर्किंग नहीं कर रही है, तो पहले डायलिसिस का वर्ड समझते हैं. It is a filtration technique in which the two fluid are being moving, by which we are performing the separation or we are making the removal of impurity from one liquid and transfer it to the another. अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, डायलिसेट है. अब यहाँ पे डायलिसिस की मैं वर्किंग बताता हूँ. डायलिसिस, फॉर डायलिसिस we have the two types of dialysis. One is called peritoneal dialysis, जो कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम hemodialysis पढ़ेंगे. And another one is hemodialysis. Hemodialysis, it's a working which we perform by means of dialyzer. अब ये dialyzer क्या है? The dialysis machine is called dialyzer. Hemodialysis, it is being performed by dialyzer. And what is that dialyzer? It's a dialysis machine. क्या है ये? It's a dialysis machine. The dialysis machine is called what? Is called dialyzer, or what we have on that. तो इस dialyzer में क्या मौजूद होता है? इस dialyzer में we have a filtrate in that is called dialysate. And that dialysate is a compound which is responsible for what? Which is responsible for filtration. Dialyzer, it's a machine, it's a dialysis machine, and which contain a compound that is called dialysate, which is responsible for removing the impurity from the blood vessels and makes the blood filter. अब मैं तुम्हें से किसी से पूछना चाहूंगा, अगर if there is any dialysis patient is near about into your circle, आपके friends में या family में कोई भी हो, तो can you tell me about how much time required for the patient to perform the dialysis? और ये weekly होता है, monthly होता है? किसी को अगर कोई idea हो तो you can share it with me. सर, my uncle has this problem, और वो weekly करवाते. Weekly करवाते, week में एक, once in a week, twice in a week, thrice in a week? Once in a week. And how much time it will take for that? So for I think 4 to 5 hours. 4 to 5 hours. Regarding your book says that the dialysis time can be around for 6 to 8 hours. तो ये time limit कर सकता है depending upon the volume of blood. Okay, I'm running out of time. तो खैर 6 to 8 hours ये हमारे पास ड्यूरेशन होती है डायलिसिस की, और ये वेरी करता है अपॉन टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड. वॉल्यूम ऑफ ब्लड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड जितना कम होगा उतना कम टाइम लगेगा. और दूसरी चीज 6 to 8 hours तो लग रहे हैं यहाँ पे, ये अकॉर्डिंग टू द बुक है, ठीक है ना. और इट कुड बी once or twice in a week. भाई जो पेशेंट केयर नहीं करेगा वो हफ्ते में 2 बार जाएगा, हफ्ते में 3 बार जा सकता है, ऑल्टरनेट डेज जा सकता है. और जो पेशेंट अपनी केयरिंग करेगा वो once in a week जाएगा, fortnight in a week जाएगा. fortnight मतलब 15 डेज में एक दफा जाएगा.
तो दैट इज द थिंग, द पेशेंट हैव टू कंट्रोल देमसेल्व्स, ठीक है। अब देखो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एक होती है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, आइदर दिस डायलिसिस वुड बी फीजिबल फॉर द पेशेंट, कितना टाइम जा रहा है यहाँ पे कैलकुलेट करते जाओ, 6 to 8 आवर्स। अब ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट डायलिसिस के लिए जाएगा और उसका डायलिसिस स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? हॉस्पिटल में पेशेंट गया, उसको बताया, बोला गया कि आप लेट जाए, आपका डायलिसिस स्टार्ट हो रहा है, ऐसा होगा? खुद बताओ। No, sir. It takes time, it takes time, 1 hour waiting है, half an hour waiting है, उसके बाद 1.5 hour आप आने में लगा रहे हो, तो it takes time, approx about 10 hours, 8 to 10 hours, isn't it? क्या ये 8 to 10 hours के दरमियान हो रहा है या नहीं हो रहा? The whole process, जाना आना, ठीक है। और हमने ये देखा है कि डायलिसिस का जो पेशेंट होता Yes, है sir. वो अकेले नहीं होता, उसके साथ कोई अटेंडेंट भी होता है, सो द 2 persons हैव टू स्पेयर 1 डे। अगर एक तो डायलिसिस का पेशेंट है और उसके साथ अगर कोई अटेंडेंट जा रहा है तो एक दिन उसको अपना हफ्ते का रखना होगा फॉर ऑल दैट पर्पस, अगर वो अपनी केयर अच्छी करता है तो। और अगर अपनी केयर अच्छी नहीं करता तो हफ्ते में 2 दिन रखेगा अपने लिए। तो क्लास 6 to 8 hours, 10 hours, मतलब 8 से 10 घंटे अगर वो बाहर है तो वापस आके तो कोई काम नहीं कर सकता, वापस आके तो सो जाएगा। तो क्लास दैट इज अ थिंग, ये एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में बता रहा हूँ, दैट ऑल द थिंग्स विल हैव टू बी फेस्ड फॉर द डायलिसिस फॉर द किडनी फेलियर पेशेंट, ठीक है। ये तो मैंने बात की हीमोडायलिसिस के हवाले से, विच इज बीइंग नॉर्मली परफॉर्म फॉर दोज पेशेंट विच इज बीइंग, ये हीमोडायलिसिस उन पेशेंट्स के लिए है विच इज बीइंग एजेड, या तो एजेड है या फिर उनकी किडनी 70 to 80% तक लॉस हो चुकी है, या बिल्कुल ही 100% तक लॉस हो चुकी है, ठीक है। 70 to 90% मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, फेल हो चुकी है। और एजेड है, हैविंग अ सर्टेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई बीपी, डायबिटीज, तो ये सारी कंडीशन में हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो क्या करें, हीमोडायलिसिस करें। अब डायलिसिस का एक और वर्जन हमारे पास था, दैट इज व्हाट, पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत इजीएस्ट वे है, लेकिन ये हर पेशेंट पे नहीं होती। पेरिटोनियल डायलिसिस की एक और कंडीशन मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये मोस्टली परफॉर्म किसमें किया जाता है, यंग पेशेंट्स में किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस वुड बी परफॉर्म ऑन टू द यंग पेशेंट्स, यंग पेशेंट जिनकी किडनी डैमेज हो जाए किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से। पेशेंट यंग है तो वो रिकवर कर सकता है, उसकी किडनी किसी भी सर्टेन मेटाबॉलिकली एंटल हुई है। एक केस हमारे पास का था कि वन ऑफ माय फ्रेंड, वो गन शॉट केस था, एक पेशेंट के नेक से, मतलब साइड नेक से, वो पेशेंट भी अभी हेल्दी है, पेशेंट के साइड नेक से बुलेट क्रॉस करते हुए दूसरे पेशेंट के, मतलब मेरे दोस्त के पेरिटोनियम पे जाके हिट हुई और उसने एक किडनी को डैमेज किया। किडनी को डैमेज किया तो क्लास, पेशेंट वुड बी यंग एट दैट टाइम, 18-20 साल का था वो उस वक्त। तो उस पेशेंट को हीमोडायलिसिस पे नहीं रखा गया, उस पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस पे रखा गया। इसमें होता क्या है कि हम एक बैग इंट्रोड्यूस करते हैं, आउटसाइड बैग बाहर होता है और उससे अंदर जो होती है ट्यूब्स अंदर जा रही होती हैं, ट्यूब्स लिंक अप विद द किडनी। अब देखो, जस्ट इफ दैट हैंड would be certainly damaged, खुदा ना खासा अगर ये हाथ डैमेज होता है तो क्या मैं इससे कोई वर्किंग कर सकता हूँ? यस क्लास, क्या मैं इससे नहीं कर सकता। अगर किडनी डैमेज है तो अगर मैं, ये मेरा हाथ डैमेज है और मैं इसी हाथ से लगा पड़ा हूँ काम करने के लिए, तो मेरा ये हाथ रिकवर होगा या और खराब हो जाएगा? तो अगर किडनी डैमेज हुई है तो आई गोना हैव टू बाईपास इट्स वर्किंग, मुझे उसकी वर्किंग को क्या करना है, बाईपास करना है, मुझे उसकी वर्किंग किसी और पे शिफ्ट करनी है। तो किडनी डैमेज हुई है ना, मुझे इसकी वर्किंग क्या करनी है, बाईपास करनी है, मुझे उससे वर्किंग नहीं लेनी, मुझे उसको रेस्ट देना है। तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कैटेटर, मुझे एक बैग इंट्रोड्यूस करना है, दैट बैग कंटेनिंग अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड डायलासेट। उस बैग में हमारे, उस बैग से ट्यूब्स अंदर जा रही हैं, ट्यूब्स रिटर्न होके वो ब्लड दोबारा से बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो क्लास, द बैग स्टिल अटैचेस टू द पेशेंट फॉर, अब उसकी कंडीशन डिपेंड करती है कि उसकी डैमेज कितनी है किडनी, वो किडनी कितने अरसे में हील करेगी, तो ये डिपेंड करता है। मोस्टली 3 मंथ्स होता है, 6 मंथ होता है, 8 मंथ होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और वो बैग वीकली या फोर्टनाइट चेंज हो रहा होता है, क्योंकि लाजमी सी बात है, इम्प्योरिटी भर जा रही है तो उस बैग को हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। वो वीकली चेंज हो रहा होता है या फिर फोर्टनाइट चेंज हो रहा होता है। तो वो यंग पेशेंट्स में होता है जिनकी किडनी एक्सीडेंटली बाईपास द वर्किंग ऑफ द किडनी, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द पेरिटोनियल डायलिसिस। लेकिन अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है, एजेड है, या उसकी किडनी 70 to 90% मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सारी वर्किंग की वजह से खराब हुई है, वर्किंग नहीं कर रही, तो क्लास दैट पेशेंट हैव टू परफॉर्म dialysis once or twice in a week, depend on its fluid and diet intake। उसकी फ्लूइड इंटेक, डाइट इंटेक पे ये डिपेंड करता है सारा मैकेनिज्म, कि अगर उसकी फ्लूइड और डाइट इंटेक अच्छी होगी तो क्लास है, और अगर मतलब अगर फ्लूइड और डाइट इंटेक अच्छी है तो क्लास
इट कैन बी वंस इन अ वीक, और अगर उसकी फ्लूइड और डाइट इनटेक सही नहीं है, वो सही वर्किंग नहीं कर रहा, तो क्लास इट विल बी ट्वाइस इन अ वीक. तो दैट इज समव्हाट वी हैव. और अगर एक दिन वो डायलिसिस करवाने जा रहा है, सो इट मैक्सिमम इट कैन टेक्स अबाउट फॉर 8 to 10 आवर, 8 से 10 घंटे लग रहे हैं. तो क्लास, और अगर उसके साथ एक अटेंडेंट है, तो उस अटेंडेंट का भी एक दिन जा रहा है. तो क्लास दैट इज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वी हैव फॉर डायलिसिस. ये तो डायलिसिस का. और ट्रांसप्लांटेशन में क्या हो रहा था, व्हाट हैपेंड ऑन टू द कंडीशन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. चलो यहीं पे ट्रांसप्लांटेशन को थोड़ा बहुत जिक्र कर लेते हैं. ट्रांसप्लांटेशन में क्या है कि एक हेल्दी पेशेंट से किडनी मैच करवा के डोनर आपने सेलेक्ट किया, और उसका हेल्दी किडनी मैच करवा के, वो किडनी 100% मैच नहीं होती भाई, पहले ये बात याद रखें ना, कि वो किडनी 100% मैच नहीं होगी. वो किडनी 70% हो सकती है, 80%. वो बहुत ज्यादा आइडियल. किडनी भी तो एक दूसरे से अलग होगी ना. तो वो किडनी जो मैचिंग होता है, टिश्यू कल्चर, ब्लड ग्रुप, सेक्स ग्रुप, एज, ये सारी चीजें मैटर करती हैं मैचिंग पे. तो जब मैच हो जाती है किडनी, तो हम परफॉर्म करते हैं ट्रांसप्लांटेशन. तो क्लास व्हाट यू कैन से, either it would be the easiest way to getting a healthy kidney from a donor, और सर्वाइव करते जाए उससे, या फिर हम कंटिन्यूअसली डायलिसिस करवाते जाए. डायलिसिस हमने देखा है पेशेंट की 15 साल से 10 साल से पेशेंट डायलिसिस पे, और कुछ पेशेंट रिकवर कर जाते हैं डायलिसिस पे होते हुए, 5 साल में रिकवर कर जाते हैं, 2 साल में रिकवर कर जाते हैं, उनकी किडनी वर्किंग करना स्टार्ट हो जाती है. लेकिन उनको फ्लूइड और डाइट इंटेक पे वर्किंग करना चाहिए. तो क्लास व्हाट यू कैन से नाउ, यस उरूज, तुमने कहा था ट्रांसप्लांटेशन सेफर नहीं है, डायलिसिस सेफर वे है. तो according to the socio-economic condition, what you can say about what is the best way for treating the kidney failure patient? Transplantation करें या डायलिसिस पे लटका के रखें पेशेंट को? Yes class. अगर जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया, उस हिसाब से ट्रांसप्लांटेशन बेहतर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सक्सेसफुल नहीं होती. About your, what's your book says that how much it would be successful? Let me see. देखो अपनी बुक्स में देखो तुम लोग. 80% केस सक्सेसफुल रहते हैं सर. 80% of the cases, 80% is not a bad figure. I don't think so. It's not a bad figure. और कह रहे हैं कि 80% would be the cases would be successful. तो ये तो मैंने वन साइड स्टोरी दी है डायलिसिस की, और इन सारी कंडीशन से हमें लगता है कि लेट्स गेटिंग स्टार्टेड अबाउट फॉर द इन्फो रिगार्डिंग द ट्रांसप्लांटेशन. जैसे कि बुक में लिखा हुआ है कि 80% ऑफ द केसेस इन ट्रांसप्लांटेशन वुड बी सक्सेसफुल. तो ये कहने का मतलब ये है कि 80% जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया है मैच करके, वो सक्सेस. क्या किडनी डोनर्स का एक्सेप्टर से किडनी मैच करवाया रिगार्डिंग देयर ब्लड ग्रुप, सेक्स ग्रुप, एज ग्रुप, टिश्यू कल्चर, तो ये सारी कंडीशंस मैच होती है, हमने किडनी ट्रांसफर की और वो किडनी जाके अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रही है. सो इट मींस दैट केस वुड बी 80% सक्सेसफुल. सवाल यहाँ पे ये आता है कि वो किडनी कितने अरसे तक पेशेंट की बॉडी में सरवाइव करेगी. जब तक पेशेंट सरवाइव करेगा उस वक्त तक थोड़े अरसे में खराब हो जाएगी या अच्छा खासा चलेगी. यस क्लास, व्हाट यू कैन से अबाउट फॉर दैट. भाई अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे हो एक पेशेंट को, आप हेल्दी किडनी दे रहे हो, तो किडनी कितने अरसे तक सरवाइव करेगी? जब तक पेशेंट जिंदा है तब तक, या थोड़े अरसे में खराब हो जाएगी, या फिर जब तक पेशेंट जिंदा है तब तक? आई थिंक मतलब हमारी नॉर्मल अप्रोच तो यही होनी चाहिए ना कि जब तक पेशेंट जिंदा है उस वक्त तक चलनी चाहिए. बट क्लास हमारी बॉडी तो इससे भी चल सकती है उसकी किडनी. ठीक है. अब मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, या एक बात तुम लोग से पूछता हूँ कि एक नन्हा सा वायरस हमारी बॉडी में आ जाए जिसका साइज नैनोमीटर में है, हमारी बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट उसको पलने देती है, उसको वर्किंग करने देती है, या फिर उसके अगेंस्ट वर्किंग करती है? वाइट ब्लड सेल्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते, एक्शन लेती है. बिल्कुल ठीक, एक्शन लेती है. व्हाइट ब्लड सेल्स उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं. ट्रांसप्लांट होता है तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स उसके भी अगेंस्ट एक्शन लेते हैं. एग्जैक्टली राइट. वो उसको एंटीजन समझते हैं. हाँ, एंटीबॉडी एंटीजन समझते हैं, उनको नेगेटिव एंटीजन समझते हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. अब एक छोटा सा वायरस आया, उसको भी हमारी बॉडी नहीं बख्श रही, तो क्या ख्याल है? एक 8 सेंटीमीटर की किडनी तुम इंट्रोड्यूस करोगे तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, 110% करेगा. हफ्ते भर में डिस्चार्ज हो जाता है. उसने एक किडनी दे दी, वो डिस्चार्ज हो गया. लेकिन जो एक्सेप्टर होता है ना, जो किडनी फेलियर का पेशेंट होता है जिसमें हम किडनी इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट पेशेंट वुड हैव टू बी इन हॉस्पिटल फॉर अप्रॉक्स अबाउट 1 month, 2 month और 3 month डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. अब भाई हमने पेशेंट को किडनी इंट्रोड्यूस कर दी, बॉडी क्या समझ रही है कि ये
इट्स अ फॉरेन बॉडी. बॉडी क्या कर रहा है? बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्किंग करने लग जा रहा है. इम्यून सिस्टम वर्किंग कर रहा है तो क्लास द बॉडी हैविंग अ फीवर, बॉडी में फीवर हो रहा है, वो जाके किडनी को टारगेट कर रहा है, WBC किडनी को वर्किंग नहीं करने दे रहा. तो हम क्या करते हैं, हम फिर उस पेशेंट को जिसको ट्रांसप्लांटेशन न्यूली करवाया है उसको देते हैं हम ड्रग्स दैट इज कॉल्ड इम्यूनो सप्रेसर. कौन सी ड्रग्स दे रहे हैं हम क्लास? इम्यूनो सप्रेसर. आई गोना हैव टू राइट इट ओवर हियर एज वेल. I have to write it. हम उस पेशेंट को देते हैं which drug? We gonna have to give the patient immunosuppressor drugs. Now what does that drug do? Either it boosts the immunity or it decreases that. सर इम्यून सिस्टम को Suppress सप्रेस कर मतलब देते हैं suppress मतलब बढ़ा देता है, कम सर कर उनकी रहा है, एक्टिविटी स्लो डाउन कर देते हैं Slow down कर एक्टिविटी दे रहा स्लो है. डाउन कर देते हैं स्लो अब डाउन अगर एक बात बताओ कि अगर एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है, चलो किडनी तो महफूज हो गई, क्या पेशेंट की बॉडी महफूज होगी इससे? आपने पेशेंट का इम्यून, आपने पेशेंट का डिफेंस वीक कर दिया. क्या ख्याल है? पेशेंट की बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? इट बिकम्स वीक. और अगर पेशेंट की बॉडी बैक्टीरिया कैन अटैक द पेशेंट, इसमें जो दूसरे वायरसेस और बैक्टीरिया हैं ये पेशेंट की बॉडी को क्या कर सकते हैं? Easily अटैक attack कर कर सकते हैं. ठीक है ना? तो दैट इज द थिंग विच यू गोना हैव टू रिमेंबर कि इसमें पेशेंट की किडनी तो थोड़ी बहुत बच गई इम्यूनो सप्रेसर ड्रग से, लेकिन दूसरे वायरसेस और बैक्टीरिया पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो इन पेशेंट को हम बहुत ज्यादा हाइजीनिक एनवायरनमेंट पे रखते हैं. ये तो हम लोग मास्क वेयर वगैरह कर रहे हैं ना, ग्लव्स वगैरह तो हम अभी कोरोना की वजह से कर रहे हैं, लेकिन इनमें इन पेशेंट को शुरू से हिदायत होती है कि वो मास्क वेयर आउट करें, डस्ट और किसी भी अनहाइजीनिक जगह पे ना जाएं, कोई अनहाइजीनिक खाना ना खाएं. ये जिस प्लेट में या जिस ग्लास में पानी पी रहे हैं उसको अच्छे से बॉईल करें ताकि कोई भी कंटामिनेशन या इन्फेक्शन इनको नुकसान नहीं पहुंचा सके. इतनी केयर के बाद ये किडनी जो पेशेंट की बॉडी में लास्ट लॉन्ग सर्वाइव करती है, दैट इज अप्रॉक्स अबाउट ओनली एवरेज सिर्फ कितना सर्वाइव करेगी? दैट इज ओनली अप्रॉक्स अबाउट फॉर 3 to 4 years. और कभी कोई पेशेंट यंग है तो उस पेशेंट की बॉडी में 7 ईयर तक मैक्सिमम वो सर्वाइव कर जाए किडनी, लेकिन उसके बाद पेशेंट को किस में मूव करना पड़ता है? फिर से पेशेंट को मूव करना पड़ता है. हमने किसमें पेशेंट को मूव करना? डायलिसिस पे. ओके, तो इतनी केयर के बाद भी पेशेंट को डायलिसिस में मूव करना है तो इससे बेहतर है कि क्या ट्रीटमेंट सर? इससे अच्छा पेशेंट को मुझे दोनों चीजें बतानी थी, दोनों को टैकल आउट करके बताना था. यस कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था. यस सर फिर अब क्या डायलिसिस बेस्ट है या फिर डायलिसिस? मैंने पूरी कहानी बता दी. नाउ यू गोना हैव टू सी अपॉन योर माइंडसेट दैट व्हिच थिंग इज बेस्ट. डायलिसिस ना, अब ट्रांसप्लांटेशन में तो पेशेंट को बहुत ज्यादा हाइजीनिक एनवायरनमेंट देना पड़ रहा है ये सारी, लेकिन उसके मैक्सिमम गोज फॉर द 7 ईयर. उसके बाद पेशेंट को दोबारा से डायलिसिस में देना पड़ रहा है. तो क्लास डायलिसिस प्रेफरेबली द बेस्ट ओपिनियन फॉर द पेशेंट टू सर्वाइव. और इसमें पेशेंट रिकवर भी हो जाता है, पेशेंट की किडनी वर्किंग करना भी स्टार्ट हो जाती है depending upon the certain medical condition and upon to the luck of the patient as well. So dialysis is the best choice for the kidney failure. Here regarding about for kidney कोई चीज पूछना चाहो तो you can ask me about for that. Yes class, any question regarding about for that, or I gonna have to end my session.